Hello. 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 Yes, yes. Hi, Aman. Yeah. Yeah, hi. Good evening. Good evening. Good evening. Yeah. We will wait for 1 more minute. Actually, the thing is now this evening time. So the link, you have received the link on WhatsApp, right? Amul? Hello? Yeah, link in the WhatsApp. It is on WhatsApp now because I have Yes, seen the yes. message on WhatsApp that uh, even the internet is not stable. Okay, I hope I'm audible now. Yes, yes. You are right. Okay, let me share the screen. And we will wait for 1 more minute. Actually, we will wait for others to join, and then we will start. Okay. Yes, Amul, you can please confirm the screen is visible. I'm audible, and Yes, this yes. meeting is being recorded. Okay, okay, we will start in 1 minute. Yeah. Okay, I think we can start. So, good evening, everyone. Uh, I hope you are doing well with your busy schedule of office work. But yeah, as we have decided ki we will be learning this entire stuff, the entire things of which will take us through machine learning and will give some opportunities where we can even work on AI related projects. So and for that reason you are here, and I hope okay, you will be consistent throughout our class. The thing is, guys, the link which I have shared now, that link is the same link which nowadays whatever these meetings which we are conducting. So the link will be same for at least this Zoom. And if you remember regarding the graphy wala part, which we were like we shifted on the graphy, and then because of some reason, some platform related issues, we stopped and like we shifted to Zoom just to get some better experience and not those kind of issues which we were facing on graphy. But hopefully those will get solved. And as they have given a tentative deadline, and also they mentioned that after this first in like 1st of August, mostly this problem will be solved, and then we will be yeah, I'm audible. Yes, yes. Okay, then we will be shifting again to graphy. So that is one thing, guys. And yeah, then let's start with the things which we are focusing today and which we will be learning today, and which is the important part of of we can say the statistics. And that statistics, those assumptions, and whatever the inferences building wala part. So whenever I'm saying inferences, means how the machine will produce the inferences, like in terms of prediction. When we say machine is giving prediction, or like generally we say responses. So guys, response is not the good keyword word for this, because as we have even explored in our orientation session, whatever whatever the things which are given through machine, like which are given by machine, those will be a
predictions, or we can say inferences. So let's dive into that. And before moving there, this is a small recap. You can have a look, because we have already discussed the things on these key concepts: the continuous, discrete, ordinal, then parameter, population, each and everything we have discussed. Today we are going to discuss and diving into a good and very important topic of this statistics, and which is helpful for us while we will be implementing the machine learning models. So in terms of classification and decision making things, how this theorem this theorem means the Bayes theorem, which I will be explaining in short. But yeah, before that, you will just have a quick look what we have, this recap what we have learned in our last session. We have learned these probability rules, the addition rule, then multiplication rule we have seen. So म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, उसके बाद हमने देखे नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स देखे। फिर हमने देखा था कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे काम करता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स पे। तो उसके लिए थोड़े बहुत हमने एग्जांपल्स देखे थे। सो वी इवन एक्सप्लोर दिस मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। उसमें हमने कंडीशनल, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में वॉट एवर द चार्ट given to us, based on that information we we calculated the probabilities of those particular events which are occurring and which were asked. So enough practice we have done there, and now let's come on the, as I said, the important part of this statistics, which is important for machine learning, and very good, which is totally based on the same methodology, guys. The analogy we can say ki how a human behavior start predicting the things based on individual's assumption, we can say. uh, हर एक का कुछ तो प्रेडिक्ट करने का कुछ कुछ अंदाज होता है, कुछ उसकी मे बी ही जस्ट वी से कि जजमेंट भी बोलते हैं हम इसको, कि भाई किसी एक इनपुट के बेसिस पे, एक इनपुट के बेसिस पे हम शुरू कर देते कि क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी किसी ऑटो में जा रहे हो, आपके साथ शेयर्ड ऑटो है और कोई बैठा है, नो मैटर कि वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है नहीं कर रहा है, बट लेट्स से इफ दैट पर्सन इज टॉकिंग ऑन फोन, ठीक है, आपको नहीं पता वो पर्सन कौन है। अगर आप उतना इंटरेस्ट दे रहे हो बैठे बैठे कि भाई वो जो बात कर रहा है उस बात से, मे बी अगर आपका एनालिटिकल माइंड है तो आप सोचना शुरू कर देते हो कि भाई ये पर्सन कौन हो सकता है। फिर उसके बातों से आप उसको गेस करना शुरू कर दोगे कि ये फिर, मतलब सपोज अगर वो कोई टर्मिनोलॉजीज, कोई वर्ड्स बोल रहा है विच आर टोटली लेट्स से रिलेटेड विथ केमिस्ट्री के कुछ वर्ड्स वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री के वर्ड्स, तो मे बी केमिस्ट्री के वर्ड्स मे बी आपको पता होंगे थोड़े बहुत, तो आप यहाँ पे जस्ट मेंशन कर सकते हो। मुझे थोड़े फिजिक्स के वर्ड्स पता है, तो चलो केमिस्ट्री को रिप्लेस करके मैं फिजिक्स का आपको बता सकता हूँ। तो फिजिक्स में देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे होता था, उसके बाद फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको पता है ना, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल, तो इस टाइप के वर्ड्स अगर आते हैं तो वी आर श्योर कि हाँ दिस इज, वी हैव लर्न दीज वर्ड्स इन फिजिक्स। तो या सो मे बी ये प्रोफेसर हो सकता है या टीचर हो सकता है, बिकॉज ही इज जस्ट डिस्कसिंग कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया था ऐसा वैसा। तो दैट इज आवर अजम्पशन कि हम वहां पे जज, मतलब एक कंसेप्ट बना लेते हैं कि या दिस पर्सन ये प्रोफेसर हो सकता है, या फिजिक्स में काम करने वाला कोई बंदा होगा, कुछ लाइब्रेरी में करता होगा, कुछ फिजिक्स का काम करता होगा, ऐसा कुछ भी। तो दिस काइंड ऑफ assumptions we can say hypothesis generally, बिकॉज या एज अ ह्यूमन माइंड, ये मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया गाइज, यू कैन रिलेट दिस एग्जांपल विथ मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल, एंड जनरली ये होता है हमारे डेली लाइफ में, ऐसे होता है कि हम किसी एक इनपुट पे ना, ये अपना बिहेवियर है तो टोटली उसको कैसे फाइन ट्यून करते हैं अपना है कि भाई ऑफिस में कोई कुछ बोल दिया तो अपना अगर दिमाग गर्म है तो गुस्सा निकाल के उस पे बोल देंगे, या फिर कहीं पे उसका गुस्सा निकाल देंगे अगर उसने कुछ गलत सलत बोला है तो। बट द थिंग इज के जैसे ये मशीन लर्निंग भी हमको वही सिखाता है, एंड एक्चुअली व्हाट एवर ह्यूमन माइंड डज ना, तो मशीन लर्निंग में भी जो भी एक लेजिटिमेट थिंग है वो हम एक्चुअली उसी वे से मशीन को भी बनाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, एंड व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस थिंग्स ओवर हियर ना इन बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम भी उसी एक उसी वी कैन से मेथोडोलॉजी और उन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है ये बेस थ्योरम, ठीक है। तो ये दिस इज द फॉर्मूला, एंड ये फॉर्मूला
मे बी लाइक अभी मैं जब बात कर रहा था तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड आपके सामने ये फॉर्मूला आ रहा है, एंड द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये गिवन उसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको गिवन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स व्हाट योर बी इज ऑलरेडी गिवन, हाँ बी इज ऑलरेडी हैपेंड, और उसके बेसिस पे आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। और ये आपको जो मेरे मेरे यहाँ पे जो पॉपुलेट हुआ है अभी जूम का, ये नहीं दिखता है ना आपको, दिख क्योंकि रहा है। ऊपर है। नहीं दिखता है ना, ठीक है चलो दिख फिर। रहा है। अच्छा दिख रहा है क्या? वो क्या है ना उसको, एक सेकेंड लेट मी क्लोज। ये बीच बीच में पॉपुलेट हो रहा है, मुझे लगा चलो, नहीं तो मैं ऐसे उसको ओपन होते वैसा डिस्टर्ब नहीं होता अपना काम, इट्स ओके। उसको देखना पड़ेगा, चलो। तो या दिस इज नथिंग बट कि बी हैपेंड, ओके बी ऑलरेडी हैपेंड, एंड देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो क्या हो सकता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके द फॉर्मूला सेज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज फॉर्मूला। बट एक्चुअली कैसे ना, इस फॉर्मूला को आप दिस इज द फॉर्मूला ऐसा रिमेंबर करो। फिर ये फॉर्मूला यूज होता है, ये फॉर्मूला की वजह से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, जैसे कि डायग्नोसिंग द डिसीज गिवन गिवन अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, अगर वो टेस्ट रिजल्ट जो भी आता है उसके बेसिस पे अगर हमको डायग्नोस करना है कि व्हाट विल बी अ डिसीज, ठीक है, तो देन वी अप्लाई दिस काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी एंड दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला लाइक बेस थ्योरम टू आइडेंटिफाई कि भाई क्या डिसीज हो सकता है। डिसीज में जो भी रिजल्ट पॉजिटिव आए उसके बेसिस पे क्या पॉसिबिलिटीज है कि सही में ये डिसीज हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड आउट करते हैं एक्चुअली। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और यूज केसेस है कि स्पैम फिल्टर, मेडिकल डायग्नोसिस, जैसे आपने बोला मैंने, फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। बट एक काम करते हैं, इसको ये फॉर्मूला को थोड़ी अलग वे से समझते हैं, बिकॉज एज आई सेड ना कि जैसे मैंने बोला हाइपोथेसिस मतलब क्या, अजम्पशन। ये भी अजम्पशन का ही है फॉर्मूला, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि भाई जो बी हो चुका है ना उसके बेसिस पे उसको अज्यूम करो, ठीक है। एंड देन उसके बेसिस पे अज्यूम करो, मतलब ये फॉर्मूला यूज करो, और देन व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड कि क्या चांसेस है ये डिसीज के होने के ना होने के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, हाँ। तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हाँ अजम्पशन, गिवन दैट कि जो भी कुछ एविडेंस है, मतलब एक इंसिडेंट है, एविडेंस बोल सकते हैं हम उसको, एविडेंट बोल सकते हैं उसको, कि वो हो चुका है, और उस हो चुका इवेंट के बेसिस पे वी आर गेसिंग ये हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी, हाँ मतलब क्या, एविडेंस हो चुका है, उसके बेसिस पे हम कुछ तो हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं कि भाई ये हुआ है ना, तो फिर ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है। वो हाइपोथेसिस बना के उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि सही में वो मतलब जो भी हाइपोथेसिस हमने बनाया था वो सही है क्या। एंड दैट्स द फॉर्मूला सेज अस कि इस टाइप में, कि फिर उल्टा करेंगे उसको, जैसे यहाँ पे दिखाई देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, मतलब एविडेंस हैपन हुआ, ये ए दिया था, मतलब ये यहाँ पे आएगा हाइपोथेसिस ना, सॉरी हाइपोथेसिस आएगा, ठीक है। इनटू 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 क्या आएगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस जो भी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस उसके बेसिस पे, एंड देन गिवन ये डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस, ठीक है। ये ऐसा अगर आप समझोगे तो फॉर्मूला सेम है, मैंने सिर्फ इनके वैल्यूज रिप्लेस किए यहाँ पे। ये सिर्फ ए बी, फिर बी ए, थोड़ा ये लग रहा था इसलिए ये ए मतलब क्या होता है, एक हाइपोथेसिस होता है, बी मतलब ऑलरेडी हैपन वाला होता है, और उसके बेसिस पे वी कैलकुलेट दिस। सो दिस इज फॉर्मूला एक्चुअली। कैसे अगर हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले रहते ना, तो ये फॉर्मूला कैसे आता है क्या आता है उसको प्रूव करते, बट एक्चुअली वी डोंट नीड द प्रूफ फॉर दिस। हमको इसके लिए ये ऐसा फॉर्मूला ऐसा ही क्यों आया वो उसके लिए प्रूफ नहीं चाहिए। तो आपने को क्या चाहिए, फॉर्मूला ये है बेस थ्योरम का, और उसको हम देख रहे हैं कैसे इंप्लीमेंट होगा मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है गाइस। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया ऑटो वाला। ओके मैं पूछना भूल गया कि गाइस व्हाट डू यू नो अबाउट बेस थ्योरम, आपको आपने कुछ बेस थ्योरम के बारे में अगर कुछ देखा पढ़ा, तो डू यू नो लाइक व्हाट डू यू मीन बाय बेस थ्योरम। जस्ट मुझे भी आइडिया आ जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग बेस थ्योरम को लेके मतलब कैसा है क्या है। जस्ट जस्ट इन केस अगर आपने मतलब पता होगा आपको थोड़ा बहुत, या स्कूल कॉलेज में या अभी भी कुछ आपने रिवीजन वगैरह कुछ किया होगा, तो जस्ट बिकॉज आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन अर्लियर, पहले ही मैं बताता फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता, तो और थोड़ा अच्छे से मतलब अंडरस्टैंडिंग मुझे भी होता कि किस लेवल तक आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स। तो इफ यू नो बेस थ्योरम और एनी एनी काइंड ऑफ, ओके जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दे दिया रिक्शा वाले का,
रिक्शा वाला नहीं, सॉरी, रिक्शा वाला नहीं, बिकॉज मैंने एक सिनेरियो जनरेट किया कि रिक्शा में दो लोग बैठे हैं, एक आप हो और एक बाजू का बंदा है, और आप जस्ट खाली मतलब बैठे ऐसे ही एम्प्टी हैंड, तो जस्ट आप उसकी बातें सुन के उसको गेस कर रहे थे कि ये बंदा क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको एग्जांपल के साथ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट लाइक ये सब दिमाग का खेल चल रहा है यहाँ पे ना, मतलब दिमाग, अपना दिमाग के बारे में हम ये सिनेरियो जनरेट करके इनको बताना, ठीक है, फिर ऐसे गेस करना, ये सब क्या है, क्योंकि वी आर नॉट लर्निंग फिजिक्स, वी आर नॉट लर्निंग केमिस्ट्री, वी आर नॉट लर्निंग एनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स और समथिंग, वी आर ऑल डिस्कसिंग अबाउट दिस, ये दिमाग में जो भी चलता रहता है ना उसके बारे में वी आर डिस्कसिंग, व्हाई वी आर डिस्कसिंग, दिमाग में जो भी, बिकॉज वॉट एवर वी आर लर्निंग ना, इट इज ऑल अबाउट एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस के बारे में हमने अपने ओरिएंटेशन सेशन में ही एक चीज डिस्कस कर ली थी, इफ यू हैव अटेंडेड द ओरिएंटेशन सेशन। तो दैट्स व्हाई, हाँ गाइस, तो ठीक है, इसलिए जस्ट जस्ट काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग गाइस, इफ आई एम आस्किंग यू कि आपको भी ऐसा कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो क्या, जैसे मैंने ये ऐसे ही रैंडमली अभी एक जनरेट करके दे दिया, डू यू थिंक एनी एडिशनल एग्जांपल इन दिस, बिकॉज बाकी के लोगों को भी और थोड़ा इंटरेस्ट आए और थोड़ा उनको भी लगे कि हाँ वॉट एवर वी आर लर्निंग इज मेकिंग सेंस, बिकॉज ऐसे ही बेस थ्योरम बता देता और जैसे ही फॉर्मूला बता देता और आगे बढ़ जाता ना, तो मजा नहीं आता, इसलिए बोल रहा हूँ। यू कैन थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल, अगर आपको मतलब जो मैंने बताया, आई थिंक दैट दैट इज मेकिंग सेंस, जो अभी मैं बता रहा था, तो समथिंग आपको रिलेवेंट लगा होगा, दैट इज व्हाट आई एम लाइक, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग यू, अगर आपको पता होगा आप कुछ रिलेट कर पाओगे कि बेस थ्योरम का कुछ कुछ ऐसा कुछ एग्जांपल आप दे पाओगे। यस गाइस, एनीवन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, बट आई होप कि आपको ये एग्जांपल से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू बेस थ्योरम। यस, आप थोड़ा और मतलब एग्जांपल देके एक्सप्लेन करोगे, समझा नहीं एक्चुअली है। ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, देखो, एक एक शेप होता है, शेप, शेप क्या होता है पता है आपको, मतलब आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन ना कि शेप कौन होता है, क्या होता है, राइट? शेप जो फूड वगैरह उसके बनाने के रेसिपीज बताता है, राइट ना, आपने देखा होगा ना कुछ शेप वाले प्रोग्राम्स, वहां पे वो सब सर। बताते हैं कि भाई इसमें ये डालो, चीनी इतना डालो, नमक इतना डालो, फिर ये रेसिपी बनेगा, उसमें ये उसको आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए बेक करो, ये करो वो करो, दैट इज शेप, बराबर? या एंड अगर मैं बोलूं कि भाई कोई ब्लॉगर है, ब्लॉगर मतलब उसको बोलेंगे हम फूड ब्लॉगर, हाँ, मतलब यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे ऐसे भी होते, शेफ वगैरह नहीं होते हो, लेकिन घर पे कुछ रेसिपी बनाते हैं, जैसे कि आजी बाई की रेसिपी, या भाई किसी ने एक वर्क जो भी हाउस वाइफ है उसने क्या कर दिया, थोड़ा उसको उसके पति ने बोल दिया, सी सी गाइस, व्हाट आर द एग्जांपल्स आई एम गिविंग, तो डोंट इसको डायरेक्ट पर्सनल ले लेना, मतलब तो उसको बता दिया भाई आप, तू मस्त पकाती है ये, तो फिर वो आप ये जो रेसिपी वगैरह तू अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो वो चला जाए, और होता भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ जाते कि भाई है क्या अच्छा कुछ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि भाई इसने ऐसा डाल दिया तो ये शेप बन गई ना, शेप इज अ वेल ट्रेन, उसने प्रॉपर एजुकेशन लेके वो जो भी कोर्सेज वगैरह करके आया हुआ बंदा, एंड ये फूड ब्लॉगर जो मतलब रहते हैं बहुत सारे कि हाँ, मतलब दे आर ऑल्सो कुछ तो बना के कुछ तो दिखा रहे, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग रेसिपीज, ठीक है, एंड शेप इज ऑल्सो गिविंग यू सम लेक्चर, चैनल पे आप देखते हो कि भाई एक प्रॉपर ऐसे सिर पे वो लेके आता है ना, अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको पूछूंगा, ये तो मैंने जस्ट एक दो दो लोग बता दिए यहाँ पे सिनेरियो में, ठीक है, और मैं ऐसा बोलता हूं आपको, आपने एक इंसान को, ठीक है, ये तो मैंने इनका ये क्या होता है डेफिनेशन क्लियर कर दिया, आप एक इंसान है या लेट्स से लेडी है, ठीक है, एंड let's say she's talking about something, हाँ, she is talking about some photos, कुछ फूड रिलेटेड कुछ फोटोज है, ऐसे ही एक फोटो है जिसमें फूड का रेसिपी कुछ जो भी है वो उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रही है, डिश में रेस्टोरेंट ये वो ऐसा वैसा बता रही है, हम्म? और ये चीज बाजू में बैठा कोई सुन रहा है उसकी बात, या फिर आप उसको देख रहे हो, और तब जाके आप अगर बोलोगे कि भाई मतलब यू डोंट नो कि वो शेफ है या फूड ब्लॉगर है, यू डोंट नो, बट आपको फिर मैं अगर पूछूंगा कि भाई तू बता ये कौन है, ये जो बता रही है ये फूड ब्लॉगर है या शेफ है, तो मे बी आप आप सिर्फ गेस ही कर पाओगे ना, वो जो भी इनपुट दे रही है उसके बेसिस पे गेस कर पाओगे, ठीक है, एक अजम्पशन बना पाओगे, हाइपोथेसिस, उसके लिए एक अजम्पशन बना पाओगे कि मे बी शी इज शेप, आपका बाजू का दोस्त बोल बोल भी सकता है, मतलब इट इट इज हिज ओन ओपिनियन,
वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो शेप नहीं हो सकती, ये कुछ तो उसको पता है भाई, उसने रेसिपी पता है। तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ अजम्पशंस, काइंड ऑफ जो चीज होती है ना, दैट इज नथिंग बट प्रैक्टिकली जो मतलब हम यूज करते हैं उसको, वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इनटू सम स्ट्रक्चर्ड वे, एंड दैट इज नथिंग बट बेस थ्योरम। ठीक है। तो बेस थ्योरम में क्या होगा, जनरली ऐसे काइंड ऑफ अजम्पशंस रहेंगे जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस काइंड ऑफ स्टफ होता है। ठीक है। और उसके बेसिस पे वी चेक कि भाई रियली व्हाट आर द अजम्पशंस व्हिच वी हैव मेड। आपने देखा सुना होगा नल हाइपोथेसिस, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा होगा नल हाइपोथेसिस, और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वी विल लर्न इट शॉर्ट, मतलब जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में, बिकॉज इन इन रियल यूज केसेस ऑफ मशीन लर्निंग ना, हमको ये निकालना होता है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ऐसे दो चीजें होती है, आपने अगर सुनी होगी पढ़ी होगी तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर करके दो चीजें होती है, एंड दीज आर टोटली बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस काइंड ऑफ थिंग। बट ये इसको ये बेस थ्योरम का एक्चुअल यूज क्या है, उस वो हम क्यों सीख रहे हैं, ये एक्चुअली ये सब क्यों कर रहे हैं, उसके लिए मैं एग्जांपल्स आपको ये से जनरेट करके बता रहा हूँ। कि भाई जैसे मैंने ऑटो रिक्शा वाला, अगर आपने मतलब ऑटो रिक्शा वाला एग्जांपल जो मैंने बताया, तो वो सिनेरियो बताया था। उसके बाद अभी ये सेकंड एडिशनल एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक है। मतलब अजम्पशंस होते गाइस, और ऐसे रियल लाइफ के लिए मैंने इसलिए बोला कि सी कैसे होता है ना कि कोई एक बंदा कुछ इनपुट दे देता है, और हम क्या करते हैं ना, मतलब चलो एक बंदा है, ये थोड़ा मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा कि व्हाट एवर आई एम डिस्कसिंग, व्हाट एवर दिस एग्जांपल्स आई एम गिविंग, दीज आर द रिलेवेंट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट एवर वी आर लर्निंग इन फ्यूचर, लाइक व्हाट एवर वी आर लर्निंग एंड व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग, ये सब ये रिलेवेंट एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। एंड पता है ये लाइफ के भी एग्जांपल्स है, होता है ऐसा। तो मैं उस आप मतलब रिलेट कर पाओगे। तो कैसे होता है ना, एक लेट से मैनेजर है, या मैनेजर है, ठीक है मैनेजर छोड़ दो, कोई और कोई एक बंदा है, और ये वाला बंदा इसको पहचानता है। और जब इसने इसको पूछा कि भाई कैसा है इसका नेचर और कैसा बंदा है, भाई ये जो बंदा है वो जो बताएगा, ठीक है, अच्छा बताएगा, बुरा बताएगा, जो भी बताएगा इसको इनपुट देगा। ठीक है। और अगर ये इसके दिए हुए इनपुट पे इसको वैसे ही जज करना लगेगा ना, तो ये दिस इज नॉट द गुड प्रोसेस, और दिस इज नॉट द करेक्ट वे, राइट। सो ये जो चीज हम देख रहे हैं दैट इज द सेम काइंड के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाओ, और उसके बेसिस पे उसको क्रॉस वेरीफाई करो कि रियली दैट इज द थिंग, और अदरवाइज इट वाज जस्ट अ अजम्पशन। सो वो जो भी हाइपोथेसिस था, नल हाइपोथेसिस, वो सही में बराबर था, मतलब जो भी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, या वो हम जो अजम्पशन कर रहे थे वो गलत था। तो ये बराबर है गलत है ये कब पता चलेगा, जब हमारे पास रहेगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, पॉसिबिलिटीज, चांसेस, जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में सीख लिया, प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज मतलब उसके वैल्यूज कैसे रहेंगी, 0.7, 0.9। ठीक है, ये टाइप की। ये जो एग्जांपल दिया ना, ये रियल लाइफ का एग्जांपल है, और उसी पे बहुत सारे लोग ट्रबल में भी रहते हैं। वो फिलोसॉफी और है उसकी अलग चीजें। बट द थिंग इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, बिकॉज नाउ वी आर लर्निंग दिस। ये सब चीजें जो कर रहे हैं वो दीज आर एआई रिलेटेड, मशीन लर्निंग रिलेटेड, एंड दोज आर नोइंगली अननोइंगली, दीज थिंग्स आर वेरी very close to our daily. Your voice is breaking, Gorakh. Okay, Is voice it is only for breaking. me? No, no. I'm getting one this एक मैसेज पॉपुलेट हुआ कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा वीक चल Okay. रहा है। बट ये कंटिन्यूअस ब्रेकिंग है, या इट्स लाइक राइट नाउ इट इज ऑडिबल प्रॉपरली, और अभी भी ब्रेक हो रहा है? ये ना शाम, ये ऐसा हमको जो इशू ना सुबह में कभी नहीं आया इतना। मतलब देर आर सम गाइज हु हैव अटेंडेड आवर मॉर्निंग सेशंस आल्सो, बट इवनिंग में आई डोंट नो कि दिस काइंड ऑफ। ओके। बट आई होप के अभी मेरा वॉइस इज गुड। ठीक है। तो ठीक है, एक काम करते हैं उसी वाले, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस बेस थ्योरम बेस्ड ऑन द सम फिगर्स एंड द एग्जांपल व्हिच वी आर टेकिंग। तो उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो अगर ये कौन सा शेप और ब्लॉगर वाला को थोड़ा सा मैं तो ये शेप वाला और ब्लॉगर वाले के बारे में थोड़ा डीप में और डिस्कस करते हैं। ब्लॉगर मतलब फूड ब्लॉगर समझिए आप, हाँ। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई वो कौन था, कोई बोलेगा शेप है, कोई बोलेगा ब्लॉगर है। बट एविडेंस और एक्चुअल जो रियलिटी है दैट ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर। और वो रियलिटी हमको कब पता चलती है, इट इट हमको तभी पता चलेगी, हमारे पास डेटा रहेगा और एक्चुअल फिगर्स रहेगी। ठीक है। मतलब एक्चुअल इन द सेंस जनरल भी, आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे यू कैन मतलब आप स्ट्रांगली बोल सकते हो वो शेप था या ब्लॉगर था। तो
मतलब सी, आपने, अगर मैं आपको पूछूंगा, ये एक जनरल क्वेश्चन है, 500 में से अगर कोई 500 लोग है, तो क्या चांसेस है कि 500 में शेप, एक आधा शेप मिलने के चांसेस आपको बता सकते हो कि भाई रैंडमली 500 लोग हमने उठाए और उसमें से ये शेप है, ये शेप है, या 500 के 500 शेप है? ऐसे हो सकता है क्या कि इसका 100% ये सब शेप है? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आपने देखा होगा रियल लाइफ में कि भाई देर आर वेरी लेस चांसेस कि भाई कोई एक बंदा मिल जाए जो शेप है। होता है ऐसा ना? आपने क्या ऐसे गली में, मतलब आते जाते ट्रैवलिंग करते उठते आगे, इधर बैठते उठते या आजू बाजू में अपने कॉलोनी में, आपने देखा है बहुत सारे शेप आपको मिले? होता है ऐसा? वेरी रेयर चांस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कोई कोई दोस्त है जो शेप है, तो मे बी आप में से कुछ लोग बोल पाएंगे कि हाँ भाई मेरा वो एक दूर का दोस्त है वो शेप। बट ऐसे होता है क्या? हाँ, ये भी शेप, जैसे कि अभी वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर एंड वी आर आईटी प्रोफेशनल। तो अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछूंगा ना, तो यहाँ पे 95% चांसेस है कि वी आर आईटी प्रोफेशनल। ठीक है? ठीक है, तो ये मतलब अगर एक फिगर कंसिडर किया जाए, तो मैं बोलूंगा कि भाई 500 में से 1% चांस है कि हमें कोई शेप मिल जाए, 1% चांस। ठीक है, अभी वो तो बाकी की चीजें डिपेंड ऑन के। या आई एम ऑडिबल, राइट? Yes, yes. Okay, yeah. So this kind of discrepancies will check because I have three routers, three different set of routers, and but as I said ना कि this problem is not maybe, but okay, we'll check कि उस पे भी क्या कर सकते हैं अभी और। But okay, let's continue with our example. ठीक है गाइस, कुछ नहीं, देखो ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो देखो प्रॉब्लम्स को कैसे हम किस वजह से सोचते हैं, डील करते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन अस। कुछ नहीं, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, आपको भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इधर उधर हो जाएगा 5-10 मिनट बट। लेकिन मुझे बताइए, हाँ, जहाँ जहाँ पे भी इफ माई वॉइस इज नॉट क्लियर ब्रेकिंग, प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट। मैं उसको रिपीट कर, वही अपने हाथ में, अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, देन ओके गाइस, सो लेट्स फिर से वापस वापस उस अपने वाले एग्जांपल पे आते हैं। तो ठीक है, आपको तो समझ गया, अगर 1% चांस है 500 में से, बिकॉज सी बेस थ्योरम का मैं एकदम एक बेसिक और कोर कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। देखो यूजुअली जैसे बेस थ्योरम में जब फॉर्मूला बता के आगे बढ़ जाता और वो सब चीजें बताता, बट फॉर श्योर के मुझे लगता है कि भाई वो एक प्रॉपर वे नहीं है। करते होंगे कोई, बताते होंगे वैसा, लेकिन मेरा यही है इंटेंशन कि आपको एकदम उसका कोर वाला चीज अगर समझ गया ना, तो फिर आपको फिर आगे की चीजें इजी हो जाती है, दैट्स व्हाई। तो व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ, ये 500 अगर हम उठाएंगे ना, 500 लोग, तो देर इज वेरी लेस चांस ऑफ गेटिंग शेप मिलने के। ठीक है, शेप मिलने के चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है, बट अगर मैं बोलता हूं कि भाई ब्लॉगर मिलने के चांसेस कितने हैं, तो आपको भी पता होगा यूट्यूब में बहुत सारे ब्लॉगर्स पड़े हुए हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी स्टेटस में भी आपने देखा होगा कि भाई जो नहीं वो अपने रिलेटिव्स में भी ये नहीं वो नहीं उसकी बात करता रहता है कि भाई उसने ये बना दिया, उसने ये कचौरी बना दी, वो जो भी पानी पूरी बना दी। ठीक है, हर कोई नहीं होता, लेकिन चांसेस है ना, चांसेस यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं कि भाई 50 में तो एक तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो आप इसकी प्रोपोर्शंस देखो और प्रोबेबिलिटी देखो। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉगर इन द सेंस, देखो ब्लॉगर का ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं कि जो यूट्यूब पे बोलेगा या कुछ ऐसा करेगा वही ब्लॉगर। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जस्ट एक रेसिपी के बारे में बात करते हैं कि भाई इसमें ये देखो हमने आज ये डिश बनाई। मैं और ऐसे अपने अपने दोस्त लोग भी कुछ करते हैं, कुछ सोयाबीन बना दिया, कुछ कुछ बना दिया, पापड़ विपड़ पे कुछ टमाटो डाल दिया, देखो मैंने ये होता है ऐसा। बट इट डजेंट मीन कि भाई वो 100% शेपी है। बट ये वाला प्रोपोर्शन आई एम जस्ट लाइक गिविंग यू सम आइडिया कि भाई प्रोपोर्शन में क्या होता है और किस किस प्रिंसिपल पे, किस किस फिगर्स के ऊपर, किस प्रोबेबिलिटीज के ऊपर हम डिपेंड होके बोल सकते हैं कि भाई ये जो बंदा हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये रियली शेप है या ब्लॉगर है। फॉर दैट रीजन वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस, लाइक इन दिस केस वी आर एक्सप्लोरिंग बेस थ्योरम। बाकी तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी आप कंसिडर करेंगे ना, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे आएगी 1/500। ठीक है, और उसको अगर आप प्रोबेबिलिटी के वैल्यू में प्रोबेबिलिटी के एक कैलकुलेशन में चेक करोगे तो इट विल कम 0.002। ठीक है, और अगर ब्लॉग ये हो गई आपकी शेप की प्रोबेबिलिटी, हाँ ये हो गई शेप की प्रोबेबिलिटी, और ब्लॉग ये ऐसा ब्लॉगर होने की या उस टाइप का प्रोबेबिलिटी हु इज नॉट शेप।
ठीक है। ब्लॉगर ब्लॉगर मैं आप बोल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ अगर मतलब ये भी चीजें होती है, एक होता है जैसे मैंने बोला H0 इज नल हाइपोथेसिस और HA इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस नहीं होगा वो होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अगर मैं इसको अलग वे से भी लिख सकता हूँ कि क्या ही इज ब्लॉगर, प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ब्लॉगर एंड द सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज दैट ही इज नॉट अ ब्लॉगर। ठीक है, उसको वैसे एक वे से आप समझो। तो ये फूड ब्लॉगर की जो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, दिस विल बी अराउंड 1/50। और 1/50 कितना होता है, 1/50 कितना होता है, इट विल कम टू 0.002 इस प्रोपोर्शन में। तो आप देख सकते हो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड देन ये कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। उसके बाद एज ए सेड कि मैं इसको आपको नेक्स्ट वाले लेवल पे भी लेके जाऊंगा, बट आप 1/50 वो कैसे आया? ये 1/50 फॉर दिस ब्लॉगर या प्रोबेबिलिटी होने की, मतलब आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि भाई आपको ये जो सिनेरियो मिलेगा ना, सिनेरियो मिलेगा ना कि 500 में से पॉसिबिलिटीज आपको कितनी मिलेगी इसकी, किसकी शेप होने की, और 50 में पॉसिबिलिटीज कितनी मिलेगी कि भाई 50 में से एक बंदा। दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। सो हियर इट इज 1/500 एंड हियर इट इज 1/50। दिस इज फॉर फुड ब्लॉगर, दिस इज फॉर शेप, ये पॉसिबिलिटीज। एंड दिस फुल ब्लॉकर में भी 500 रहेंगे तो 500 आएगा। फुड ब्लॉकर में 500 रहेगा ना, तो यहाँ पे 10 रहेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट। क्योंकि चांसेस है आपको फूड ब्लॉगर में 500 में से 10 तो मिलेंगे ही, ऐसे कि जे जो जो चांसेस है कि दीज आर 500 पीपल लाइक। मतलब अपन और अजम्पशन पे बता रहे हैं, मतलब ये नहीं है। करेक्ट करेक्ट, तो दिस आर द अजम्पशंस, तो उसको हम आगे देख रहे हैं फिर। तो वही तो मैं बोला, अजम्पशंस हाइपोथेसिस बेस्ड थ्योरम इज टोटली बेस्ड ऑन दिस। जैसे मैंने एक फॉर्मूला जो बताया ना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और एविडेंस ऑलरेडी हैपन। तो एविडेंस ऑलरेडी हैपन, उसी के बेसिस पे तो अजम्पशन बन रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको बोला कौन सा, कि रिक्शा वाला जो एग्जांपल दिया कि भाई आप जनरली क्या गेस करोगे, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको और कुछ ऐसे एग्जांपल पता है क्या कि जिसके बेसिस पे आप अजम्पशंस निकालते हो, बट इन एक्चुअल बेस्ड ऑन द टोटल पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अपने पास मे भी आपको पता होगा एक जनरल केस है, जनरल मतलब ये जनरली देते हैं इसका एग्जांपल कैसा। एक लाइब्रेरियन होता है, लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन, और एक होता है फार्मर। ठीक है, फार्मर, हाँ मैंने जस्ट बता दिया आपको, फार्मर। मैं एक एग्जांपल 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 खेल रहा हूं कि ताकि आप रिलेट कर पाओ, बाकी तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो दिया हुआ रहता है वो चीज। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई कोई बंदा है जिसने चश्मा पहना है, चश्मा पहना है, और वो काफी किताबें पढ़ता है, वो काफी किताबें पढ़ चुका है, ठीक है? काफी किताबें पढ़ चुका है। तो वो बंदा कौन हो सकता है, फार्मर हो सकता है या लाइब्रेरियन हो सकता है। मैंने एक रैंडम बंदा उठाया एंड आई एम सेइंग कि भाई चश्मा पहनता है, काफी किताबें पढ़ चुका है। तो जनरली आप क्या गेस करोगे वो कौन हो सकता है? ऑब्वियसली गाइस आप क्या गेस करोगे, ऑब्वियसली आप बोलोगे भाई वो लाइब्रेरियन हो सकता है, राइट। यस गाइस, बोल सकते हो ना आप कि वो लाइब्रेरियन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जनरली हमने जितने भी फार्मर देखे भाई, ऐसे किताब विताब पढ़ने वाले फार्मर तो हमने देखे ही नहीं। बट अगर मैं बोलूंगा कि भाई अपना जो डेटा है, टोटल डेटा, ठीक है, उसमें सिर्फ अपने पास है 10 लाइब्रेरियन, अब हमारे जो भी ये है, और टोटल जो भी है फार्मर है अपने पास, मतलब रियल लाइफ का बता रहा हूं, फार्मर है अपने पास 5,000। ठीक है, 5,000, और आपके पास 10 लाइब्रेरियन। तो किस बेसिस पे आप बोलोगे कि भाई हाँ हमने जितने भी लाइब्रेरियन देखे चश्मा और ये किताबें पढ़ने, बट यू जस्ट सी द एक्चुअल फिगर्स एंड बेस्ड ऑन दिस 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 एग्जिस्टेंस आप अनुमान ये अजम्पशन जो भी आप निकालोगे, तो ऐसा नहीं ना कि बेस्ड ऑन दिस फिगर्स, मतलब ये 10 के 10 आपको मिलेंगे कि चश्मा पहने हुए और सब किताबें पढ़ते। ऑब्वियसली लाइब्रेरी है तो किताब पे ही खेलेगा, किताब ही पढ़ेगा। तो भाई अगर ये 5,000 में से अगर हमको मिल गए 500 फार्मर, कि वो पढ़े लिखे फार्मर है एंड वो भी घर पे किताबें भी पढ़ते हैं और फार्म फार्म से मतलब फार्म पे जाके फार्मिंग भी करते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 10 के 10, 10 के 10 क्या है, चश्मा लगाते हैं, किताब पढ़ते हैं। तो भाई इसका इसका 100% चांसेस है कि भाई यस ये चश्मा और यहाँ पे आपका क्या किताबें पढ़ने वाला बराबर। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे काउंट देखो ना आप, 500 500 फार्मर
जो किताबें पढ़ रहे चश्मा लगाया है आउट ऑफ 5,000, ठीक है, ठीक है। द थिंग इज आपके पास डेटा कितना है उसके बेसिस पे मतलब ये मैं बेस थ्योरम का जो बात कर रहा हूँ, ये इसी 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 सब चीजों को ये करता है, गेस करके आपको बताता है कि भाई आप किस पे बिलीव जो भी कर रहे अजम कर रहे हैं वो कितने हद तक सही है और कितने हद तक होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट मैंने, आई होप कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे बता दिए और यू कैन रिलेट के व्हाट व्हाट द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। एनीवे, यहाँ पे ये जो चीजें बताई मे बी होपफुली कैसे ना कैसे आपके दिमाग में गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड देन मे बी फिर मैं जो बता रहा था ये सब चीजें आप रिलेट कर पाओगे कि किस वे से वी आर डीलिंग विद एंड वी आर गोइंग विद, बिकॉज एनीवे वी हैव वेरी लिटिल टाइम। और ये जो चीजें वो आई थिंक कि ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और जब मैं बोलूंगा कि मैं अगर नॉर्मली आपको बेस थ्योरम ऐसे ही बता के आगे निकल जाता ना, तो आई डोंट थिंक कि वो उस इम्पैक्ट से, मतलब उस हद से आपको समझता। आई बिकॉज दिस इज एक्सपेरिमेंट गाइस, और जो कि अभी तक का एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे मैंने बताया। और डोंट वरी, जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए आपको थोड़ा ना थोड़ा कुछ तो मिलेगा उसका बेनिफिट। आई होप यू आर देयर एंड वी हैव नॉट डिस्कनेक्टेड, बिकॉज नाउ आई एम ओपनिंग द अवर ये वाला पार्ट। कौन सा? मैं जुपी अपना वीएस कोड ओपन कर रहा हूं और आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली लेके जाता हूँ बेस थ्योरम पे। ठीक है, बेस थ्योरम पे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको फिर प्रैक्टिकली बताऊंगा कि बेस थ्योरम नहीं तो व्हाट जो मैंने बताया ना, एक जनरली क्या होता कि बेस थ्योरम है एंड दिस इज आवर एग्जांपल, ओके। एंड बेस थ्योरम इज वेरी यूजफुल फॉर मशीन लर्निंग एंड टू गेट द प्रिडिक्शंस एंड टू अंडरस्टैंड आवर व्हाट आर द these inferences are we are getting through machine learning ना, those are like हाउ एक्यूरेट दोज आर, ऐसे बता के मैं आगे भी निकल सकता था यहाँ पे बेस थ्योरम, ओके। एंड देन ओके, वन सेकेंड ना गाइस, आई एम जस्ट ओपनिंग वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको, क्योंकि बट ये मुझे ना वो वाला चीज अच्छा नहीं लगता कि जैसे उसके बारे में आपको बता दूं और आगे बढ़ जाऊं, तो तब भी आप आगे जाके क्या होता आपको कंफ्यूजन ही और थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता था बेस थ्योरम के बारे में, अगर मैं डायरेक्टली वहां पे लेके जाता तो। आई एम जस्ट ओपनिंग वन एग्जांपल फाइल और वहां पे हम और एक और ज्यादा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बेस थ्योरम को एक्सप्लोर करेंगे गाइस, ठीक है। तो सो ठीक है, बेस थ्योरम को देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। मैं अभी एक आपको और एक एग्जांपल बता रहा हूँ और उसमें प्रैक्टिकली आई एम गिविंग सम फिगर्स, बिकॉज वहां पे मैं आपको सिर्फ एक बातें दे रहा था और एक अजम्पशन बता रहा था, बट आई थिंक अभी अभी आप उस वाले एग्जांपल जो भी हमने लिया उसको आप थोड़ा को रिलेट कर पाओगे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल पे कॉन्सेंट्रेट करिए गाइस, बिकॉज आई नो, मुझे पता है स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना और खुद वो समझ लेना इज द जबरदस्त पार्ट है, ठीक है। अभी फिर से यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन करो, मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा सा उसको ठीक से समझो। हाँ, मैं बेस थ्योरम की बात कर रहा हूँ और मैं एक एग्जांपल और एक सिनेरियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उसको आप समझिए। आई होप कि इमेजिन करना इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। इमेजिन यू आर होस्टिंग अ पार्टी, ठीक है, आपने इमेजिन कर लिया कि भाई आप पार्टी दे रहे हो, ओके, ठीक है। उस पार्टी में उस पार्टी में कुछ लोग आएंगे, ठीक है, कुछ लोग आएंगे और उन उन लोगों के लिए आपने अरेंजमेंट करके रखा है ऑलरेडी। आपने क्या किया है, आपने आपको पता है कि भाई वेजिटेरियन भी आने वाले हैं पार्टी में और नॉन वेजिटेरियन भी आने वाले हैं पार्टी में, आपने दी हुई पार्टी है, ठीक है। और आपने क्या नियोजन किया है, वहां पे अरेंजमेंट करके रखा है आपने, वेजिटेरियंस के लिए भी कुछ आइटम्स रखे हैं और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी कुछ आइटम्स रखे हैं, ठीक है, ठीक है। और आपने जो भी लिस्ट बनाया था आपके गेस्ट लोगों को, तो उस लिस्ट में आपको पता है कि 30% ऑफ यूर गेस्ट जो भी आने वाले हैं उसमें से 30% वेजिटेरियंस है। ये डेटा आपके पास है, ठीक है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट बेस थ्योरम और मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आऊंगा, लेकिन आई होप कि आप यहां पे हो, अभी यहां पे हो, ठीक है। तो 30% ऑफ यूर गेस्ट आर वेजिटेरियंस, ये आपको पता है एंड दैट्स वाई आपको ये भी पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वेगन इज ये 0.3, ठीक है। 70% जो भी, हाँ कोई भी फिगर हो सकता है, आपके 150 हो सकते हैं गेस्ट या फिर 200 हो सकते हैं, जो भी होंगे, लेकिन उसमें से 30% है वेजिटेरियंस, 70% है नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन 70% है, तो आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन मिल गया, वो है 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेजिटेरियन मिल गया वो है 0.3,
ठीक है। और ये अगर आपको ये 150 और 200 अगर थोड़ा दिक्कत दे रहा है ना, तो फॉर सिंप्लिसिटी आप ऐसे कंसिडर करो कि 100 गेस्ट है। सिंप्लिसिटी, हाँ, मतलब ये आपको जल्दी रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं 100 एक आंकड़ा लिख दिया। ठीक है, ओके। देन, हाँ, ये सब दिया हुआ डेटा। यू नोटिस कि भाई आपने क्या नोटिस किया, समवन पिक्स द फ्रूट सलाड फ्रॉम द डेजर्ट टेबल। ठीक है, किसी ने वो डेजर्ट टेबल रखा था, वहां से फ्रूट सलाड लिया। यू ऑल्सो नो क्या, कि 80% ऑफ वेजिटेरियंस पिक द फ्रूट सलाड। ऑब्वियसली वेजिटेरियन है तो भाई उनका जो काउंट है वो ज्यादा ही रहेगा, ये आपको पता है कि 80% ऑफ द वेजिटेरियंस वो फ्रूट सलाड उठाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या चीज मिल रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग फ्रूट सलाड गिवन वेगन। ये इसको मैं प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में लिख रहा हूं, एंड आई होप कि ये लैंग्वेज आपको समझेगी, बिकॉज हमने लास्ट सेशन में प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लोर किया था। ठीक है, एक्सप्लोर किया था कि कैसे लिखते हैं, कैसे होता है, गिवन गिवन वाला मैंने बताया आपको कैसे होता है। तो ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग फ्रूट सलाड गिवन वेगन, मतलब क्या कि वेजिटेरियंस फ्रूट सलाड को पिक करेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, मतलब 80%। 20% ऑफ नॉन वेजिटेरियंस पिकिंग फ्रूट सलाड, तो इसका भी आप लिख सकते हो आराम से, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग फ्रूट सलाड नॉन वेजिटेरियन, और वो है 0.2। ये सब डेटा आपके पास है। और आपको है ना एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अगर कोई गेस्ट पिक द फ्रूट सलाड, अगर वो फ्रूट सलाड उठा रहा है, मैं जैसे मतलब ऐसे समझो कि ये सब पार्टी चल रही है और दो बंदे बैठे हैं, ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, कुछ तो वो नजारा देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो भी फ्रूट सलाद उठा रहा है, कि क्या चांसेस है कि वो वेजिटेरियन है ना। ऐसे ही दो बंदे हैं, उनको ऐसे इधर उधर की दुनियादारी पड़ी है और एक दूसरे से बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है ना, नॉन वेजिटेरियन भी फ्रूट सलाद खा रहा है और वेजिटेरियन भी फ्रूट सलाद खा रहा है, बट भाई कितने ऐसे हैं कि जो खा रहे हैं फ्रूट सलाद उठा रहे, वो वेजिटेरियन है ना। इफ अ गेस्ट पिक द फ्रूट सलाद, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर वेगन, ये जानना है, या ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बना हुआ। ठीक है, तो ये ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया है। एंड नाउ ये जो है, तो भाई ये तो हवा में कुछ भी बात कर देगा, बट ये हवा में बातें तो होती है, बट ये बेस थ्योरम क्या बोलते हैं ना, बेस थ्योरम इज अ स्ट्रांगली स्ट्रांगली हमको एक एविडेंस या प्रूफ देता है कि भाई ये है उसकी प्रोबेबिलिटी, और ये है, ऐसे हो सकता है। और बेस थ्योरम का बहुत बार है ना, जो भी बेस ने जो भी थ्योरम बताया है, उसका थ्योरम अप्लाई हुआ था, अगर उसकी हिस्ट्री देखोगे ना आप, तो एक क्या हुआ था, हाँ, एक समुंदर में ना एक जहाज डूब गया था, और वो जहाज डूबा था, और उसमें मतलब आप देखो उसके बारे में अगर आपको नॉलेज होगा, तो उसने ये सॉल्यूशन बताया था, बेस थ्योरम का सॉल्यूशन वहां पे इंप्लीमेंट हुआ था, और वो जहाज में बहुत सारा पैसा था, और उसने एक अंदाजा जो दिया था ना, वो अंदाजा बराबर निकला था, और उसने ऐसे हवा में नहीं बोला था, उसने एक स्ट्रक्चर्ड वे से प्रॉपर ये बेस उसका थ्योरम यूज करके उसने वो उसका ये दिया था, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन इन द सेंस, उसको ये निकला था, उसका जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट निकला था। तो वो दैट इज द थिंग, ये जनरल नॉलेज है, इसके इसका इससे कोई मतलब बेस थ्योरम तो वही है विच आई एम। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बेस थ्योरम के, बेस थ्योरम की हेल्प लेके, बेस थ्योरम के स्ट्रक्चर के वे से हम इसको सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस आपको प्रॉब्लम समझा ना यहाँ तक, और कुछ पूछना है क्या इसमें, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ना, दैट्स व्हाई। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ गया ना, आई होप कि आपको समझा होगा। एंड देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो मैं सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ता हूँ गाइस। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है तो प्लीज बताइए मुझे कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ आपको मिल रहा है, इसमें हिंट मिल रहा है, बताने चाहते हो कुछ यहाँ पे, तो प्लीज आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, और आपका जो भी इनपुट है वो आप दीजिए कि क्या कर सकते हैं इसमें ना। एक जस्ट एक कुछ नहीं, मैंने बोला है ना, गलत हो या सही हो, आपका पार्टिसिपेशन इज मेकिंग द ये चीज बहुत एक्टिव बनाता है, दैट्स, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि जो ये सिनेरियो मैंने जनरेट किया, इमेजिनेशन आपको बोला, तो एटलीस्ट आपको वो समझा है। जस्ट बस उसी के लिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप 100% मुझे करेक्ट आंसर दो, बट एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, और बिकॉज फ्रूट हाँ, सलाद तो 100% लोग पिक कर रहे हैं ना यहाँ। हाँ देखो कुछ तो इनपुट आपने दिया। हाँ, क्या, यस, व्हाट यू आर सेइंग, फ्रूट व्हाट, सलाद हाँ वो हाँ, 100% लोग पिक कर रहे हैं ना। 100%। नहीं अच्छा, नो, यस,
आप इसका अगर कैलकुलेट करोगे ना, यस, तो आप 80% और 20% बचे हुए 20%, और उसको आप बोल रहे हो कि भाई ये चांसेस है फ्रूट सलाड के उठाने के, और ये चांसेस, यस यू आर राइट, बट द क्वेश्चन इज इफ अ गेस्ट पिक द फ्रूट सलाड, ठीक है, गेस्ट जो भी है, जो 100% पिक हो रहा है दैट इज करेक्ट, बिकॉज 80% जो है वेजिटेरियन वो उसको पिक कर रहे हैं, 20% जो नॉन वेजिटेरियन है उसको पिक कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई जो भी पिक कर रहा है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या चांसेस है कि वो वेजिटेरियन है। आप समझ रहे हो क्वेश्चन को, आप समझ रहे हो मतलब, बट या व्हाट यू हैव गिवन द इनपुट ना, दैट इज वेरी गुड एंड विच इज करेक्ट एक्चुअली, करेक्ट इनपुट आपका बराबर है। बट ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग कि भाई कितने परसेंट फ्रूट सलाद उठा रहे, नो नो, क्वेश्चन इज आस्किंग कि जो भी उठा रहा है, जो भी एक्स वाई जेड, चलो एक बंदा है वो उसने उठाया, बंदे ने फ्रूट सलाद उठाया, बिकॉज या 100% लोग मतलब जितने भी आए हैं सब उठा रहे फ्रूट सलाद, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट जो बंदा उठा रहा है ना, वो बंदा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इसके चांसेस, इस बंदे के चांसेस कितने हैं कि भाई वो वेजिटेरियन है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ये क्वेश्चन है। बट और इसका ऑलरेडी तो आंसर इधर दिया हुआ है ना कि 80% ऑफ वैगन्स पिक द फ्रूट सैलेड, तो सेम। अच्छा ये क्या, हाँ मतलब वो तो ऑलरेडी बता रहे ना कि करेक्ट, आपके पास नहीं नहीं, पॉइंट भी है उसमें हाँ से ये 80 तो और बराबर है, ये तो बराबर है कि 80% उठा रहे फ्रूट सलाद को, ठीक है, बट वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बंदा ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये प्रोबेबिलिटी हमको जाननी है। तो इसमें आप क्या बोलोगे फिर, इसकी चांसेस है कि ये मतलब 80% प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये वेजिटेरियन है, बराबर, करेक्ट, हाँ, क्योंकि बराबर। वो तो मोटिव्स का वही तो चांसेस है। वही तो एक चीज है गाइस, और मैं जो जो एग्जांपल्स आपको बता रहा था ना, जो एग्जांपल्स में अभी तक 3 एग्जांपल्स जो दिए ना, तो वही तो खेल है। और खेल क्या है, जनरली एज अ ह्यूमन माइंड हम क्या कंसिडर कर लेते हैं ना, जो हमको पिक्चर में जो ज्यादा दिखता है ना, वो ज्यादा दिखने के बाद हम उसी को क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं, और उसी के बेसिस पे हम डायरेक्ट आंसर डिसाइड कर लेते हैं, बट वो एक्चुअल में ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बिकॉज हमने अभी यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई 80% जो है फ्रूट उठा रहे, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि भाई 80% चांसेस है कि ये बंदा क्या है, ये बंदा है वेजिटेरियन, और उसके बेसिस पे हमने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि ये वेजिटेरियन है, और इसके इतने चांसेस है, बट द रियलिटी हम अभी कैलकुलेट करेंगे क्या होता है और कितने चांसेस है एक्चुअली। एंड यही तो कॉम्प्लेक्सिटी और क्रूशियल और क्रिटिकल चीज जो है ना बेस थ्योरम की, विच आई एम जस्ट डिस्कसिंग ओवर हियर एंड जस्ट टॉकिंग। सी, मुझे पता है कि जब आप मशीन लर्निंग सीख जाओगे, मशीन लर्निंग करोगे, एआई पे काम करोगे, उस टाइम पे इतना डीप में आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि भाई बेस थ्योरम ने ये बताया था, बट द थिंग कैसे ना पिक्चर में और ये अपने प्रोसेस में ये चीज आ रहा है, और आ रहा है, तो उसको इस लेवल तक डीप में डिस्कस करो कि भाई बाद में ये फ्यूचर में कभी भी आएगा ना। हेलो, if you are asking question na, I'm not able to hear actually, if you are asking question or something, I'm not able to hear। आपको कुछ क्वेश्चन है? यस अमोल, आदित्य, नो नो, नो। अच्छा, आई एम जस्ट हियरिंग सम वॉइस ना। मुकेश 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 का इको था। अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट, मे बी दैट इज नॉट क्वेश्चन, आई होप। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, बट द थिंग मैंने जो बोला ना गाइस, वो आपको मतलब जैसे ये भी चीज बोला कि मशीन लर्निंग, फिर आप बोलोगे भाई ये मशीन लर्निंग इतना जबरदस्त, इतना क्रिटिकल में क्यों, फिर कैसे होगा, ठीक है, वो भी एक अजम्पशन हो सकता है आपके दिमाग में, बट डोंट वरी, एज आई एम सेइंग ना, वी आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस जिसमें बेस थ्योरम आ रहा है, तो बेस थ्योरम में डिस्कस डीप में करने का, अगर मतलब डीप में करेंगे तो दैट विल बी बेटर, नहीं तो मैं थोड़ा बेस थ्योरम को फॉर्मूला बता के आगे बढ़ सकता था, बट मुझे पता है कि लाइफ में आप ये सब अभी सीख रहे हो ना, तो ऐसा सीखो कि फिर से फ्यूचर में इसको सीखने की जरूरत ना पड़े, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग। अदरवाइज सी, हमारा जो फोकस है मशीन लर्निंग एआई है, और फॉर श्योर कि वी विल बी लर्निंग दैट ऑफ लाइक, ये तो 100% उसको हम करेंगे, सीखेंगे, सब करेंगे, बट स्टैटिस्टिक्स में ये पिक्चर में आ रहा है, तो मैं आई एम जस्ट थोड़ा डीप में और इसको डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज ऑल। और ज्यादा आप इसको भी इतना मतलब ये मत कीजिए, थोड़ा आपका जो अजम्पशन और जो भी है, इट्स ओके। बट चलो अभी ये इसको सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं अभी। बट ये दिस इज वेरी गुड गाइस, आप जो बोल रहे हो ना उससे मुझे भी पता चला कि हम एक्चुअली आ जाके उसी चीज पे आए कि ये 80% पे हम ये हो गए क्या, कि उसी के बेसिस पे हमने इसका आंसर बता दिया, बट इन रियलिटी क्या है उसको अभी देखते हैं, ठीक है, चलो इसको देखते हैं अभी। तो चलो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने पास क्या क्या दिया है, अपने पास जो बेस थ्योरम के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ,
एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको अगर हैश 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 करूंगा ना, बिकॉज दिस इज मार्क डाउन ना गाइस, ये जो सेल है ना मार्क डाउन है तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, नहीं तो हैश नहीं दूंगा तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, पहले तो मुझे आप बेस थ्योरम जो मैं जब बता रहा था और आप देख रहे थे, तो जो भी आपने देखा होगा पिक्टोरिकली क्या था बेस थ्योरम, बताओ मुझे क्या देखा था आपने। चलो मैं यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या देखा था बेस थ्योरम में? यस गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या था बेस थ्योरम? यस, जब मैं वहां पे आप डिस्कस कर रहा था, वो बहुत टाइम से आपके सामने बेस थ्योरम था वहां पे। क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यस गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, उल्टा था ये ना? था फिर से बी ये उल्टा था और ना? ये था। हाँ ये था ना, यस ठीक है। मतलब आई एम जस्ट राइटिंग अ बेस थ्योरम, उसके बाद में हम धीरे धीरे वो दिए हुए फिगर्स और उस पे जाएंगे। और हो सकता है कि आज का सेशन थोड़ा डिले हो जाएगा, बट इट्स ओके गाइस, आई होप कि आप रहोगे यहाँ पे। ठीक है, इसको खत्म करके जाएंगे इस एग्जाम्पल को। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला कि ये बार बार रिपीट नहीं होगा, जो भी आज मैं आपको बेस थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ, इट्स ओके, वन टाइम लर्निंग है। बट एक्चुअल में इसका जो मेन कोर था वो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और लास्ट में आएगा आपका पूरा डिवीजन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये था ना अपना बेस थ्योरम, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये डिवाइड बाय है गाइस। तो इसको आप ऐसे भी, ये ऐसे भी समझो कि ऐसा है और ऐसा है। ठीक है, या तो फिर एक शॉर्ट में मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या तो फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट स्क्रीन करूंगा इसी फॉर्मूला को, जस्ट एक आपको वही वैसा का वैसा दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक मार्कडाउन डाल दूंगा, और मार्कडाउन में यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। चलो आ गया, हाँ फॉर्मूला आ गया, जस्ट फॉर टाइम भी ना। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को अभी अपने वाले जो भी हमारे पास जो वैल्यूज है ना, उसके उस दिए हुए वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे अभी। ठीक है, तो भाई इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये क्या है अपने पास? ये है अपने पास, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, हाँ प्लेन टेक्स्ट है, ए गिवन बी क्या है अपने पास? ए गिवन बी, हाँ तो ए क्या है अपने पास? हाइपोथेसिस है, करेक्ट। और बी क्या है? एविडेंस है, मतलब ये ऑलरेडी हैपन, वी कैन से बी इज एवर एविडेंट। ओके, हाइपोथेसिस वर्सेस बी म्हणजे हॅपन. हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फिर यस, आपने जो बोला वही है बराबर, ए इज हाइपोथेसिस बी इज हैपन। चलो, तो यहाँ पे मैं लिखता नहीं, आई होप कि आपको समझ गया। ठीक है, देन हाँ, तो फिर मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो, या इसमें आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये क्या बोलोगे फिर इसके बारे में? इसके बारे में आप क्या बोलोगे? एनीवे जो भी आपके दिमाग में है, फिर हम उसको करेक्शन कर लेंगे। वही कि भाई ये जो रहेगा ये लाइक्लीहुड रहेगा एक्चुअली, दिस विल बी लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड क्या? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके, गिवन गिवन क्या? गिवन क्या? ए हैपन। अभी आप बोलोगे कि भाई ए हैपन बट ए इज हाइपोथेसिस, राइट? तो हम ये जो टाइप 1 टाइप 2 एरर का जो मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था ना, टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब उसको हम सीखेंगे ही बाद में। ये वाला नल हाइपोथेसिस मतलब ऐसा जीरो, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और ये मतलब ये हम एज ए सेड के मैं टाइप 1 टाइप 2 एरर जब बताऊंगा तो ये इसका जिक्र होगा। और हाइपोथेसिस तो आपको उससे अंदाजा आ गया हाइपोथेसिस क्या होता है। तो जनरली टू सॉल्व द प्रॉब्लम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ना, हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसको एच जीरो एच नल ऐसे भी लिखते हैं, और उसको एग्जैक्टली अपोजिट बनाते हैं। मतलब मैं अगर बोलूंगा ना कि आज बारिश होने वाली है, ठीक है, आज बारिश होने वाली है, हाँ, और जो भी डेटा दिया, तो नल हाइपोथेसिस आप क्या कंसिडर करोगे पता है? उसका उल्टा, कि आज बारिश नहीं होने वाली है, नॉट, नॉट लगाओगे। और फिर इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे, और इसका जो डेटा दिया है उसकी कैलकुलेट करोगे, और उसके बेसिस पे आप पी वैल्यू निकालोगे। और पी वैल्यू जो नॉट वाली जो आएगी, उस जो भी नॉट वाले की जो मतलब ऐसे एक स्टैंडर्ड है 0.5 जो भी आएगी, उसके बेसिस पे यू विल से कि नल हाइपोथेसिस इज रॉन्ग और नॉट करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज करेक्ट। ये हमने कॉलेज में पढ़ा है गाइस, ये जो चीजें ना ये कॉलेज में पढ़ी हुई, जिन्होंने भी मैथ स्टैट 12वीं में पढ़ा होगा उनको पता है ये चीज। तो भाई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई व्हाट एवर द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू फॉल्स हम देखते थे, मैंने एक शॉर्ट में बता दिया। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइकलीहुड, ठीक है, बिकॉज वी आर नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये दिस फॉर्मूला, दिस वाला पार्ट इज टेलिंग यू द लाइकलीहुड, लाइकलीहुड के बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज हैपेंड, जो हमने अपना जो है हाइपोथेसिस ए, हाँ वही वाला आप वही कंसिडर कीजिए, एच डिवाइड बाय ई वाला पार्ट जो अभी मैंने बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डिवाइड बाय ई, और वो फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, ये है अपने पास लाइकलीहुड है। ठीक है, अभी अभी है अपने पास एक हो गया,
फिर 2 हो गया, फिर क्या बचता है, ए और बी। ठीक है, ए और बी बचता है। ठीक है, तो लेट मी राइट इट हियर। ठीक है, एक काम करता हूँ, उसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आप समझ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट ए हैपन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट बी हैपन। ठीक है, चलो फिर डायरेक्ट आते हैं जो अपने पास दिए हुए वैल्यूज है उस पे आता हूँ। तो ये आप समझ जाना। ठीक है, ये अभी जो दिया हुआ है अपने पास डेटा क्या है, वो डेटा अभी लेते हैं। ठीक है, डेटा क्या है, क्या अपने पास, हमारे पास क्या है गाइस, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास वेगन की प्रोबेबिलिटी है कितनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेगन इज 0.3 है। ठीक है, ये ड्राइंग क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अपने पास जो डेटा है, वी नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी यहाँ पे थोड़ा एक कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना। वेगन की प्रोबेबिलिटी अपने पास दी हुई है और वो क्या है, अपने पास उसका डेटा है प्रॉपरली और वो है 0.3। ठीक है, 30% है। उसके बाद फिर आप बोलोगे कि नॉन वेजिटेरियन की भी है, और दैट इज नथिंग बट नॉन वेजिटेरियन की कितनी है। ठीक है, एक एक काम करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। 0.7. हाँ, ये मार्क डाउन है ना, इसको मैं वेरिएबल में लेना चाहता हूँ ताकि वो वेरिएबल्स आई विल बी यूजिंग इन द फॉर्मूला एंड इन आवर नेक्स्ट कैलकुलेशन। तो गाइज मैं वहां पे अभी ये ऐसा लिखता हूँ, वेगन लिखता हूँ, एंड दिस इज आवर वेरिएबल, पाइथन का वेरिएबल यहाँ है, और ये स्ट्रिक्टली दिया हुआ है 0.3। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन वेगन, हाँ हाँ, वो क्या है अपने पास, आपने जो बोला वो 0.7। ठीक है, ये दो तो आ गई आपके पास, दो तो पता है अपने को। उसके बाद क्या दिया था अपने को, हमारे पास ये डेटा है। अरे यहाँ पे इस हमने डेटा में दिया हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाड गिवन वेगन। इसका मतलब क्या, कि जो वेजिटेरियन है वो फ्रूट सलाड को उठाने वाले हैं, और उसकी है प्रोबेबिलिटी 0.8। तो मैं यहाँ पे उसका वेरिएबल, एक सेकेंड, ये बराबर हो रहा है कि नहीं, जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अच्छा, ये एनवायरनमेंट सेट कर दें तो गाइस मुझे। ठीक है, अब जाके ये ग्रीन हुआ, ठीक है, ब्लू हुआ सॉरी। ठीक है, तो ये मैं वेरिएबल्स में असाइन कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेगन इज नॉन वेगन। और दो चीजें उसको ऐड करता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेगन गिवन नॉन वेगन, नहीं ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट, ये जो आया था वो ऑटो पायलट था गाइस। तो ऐसा मतलब जो पॉपुलेट हो रहा था ब्लर में वो ऑटो पायलट है, वो जस्ट सजेस्ट करता है कि आप आगे क्या लिख सकते हो, मतलब क्या एक प्रॉपर रहेगा वेरिएबल का नाम वगैरह। बट वी नीड व्हाट वी आर गिवन, कि हमको क्या दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाड गिवन वेगन, मतलब क्या, कि भाई वेजिटेरियन फ्रूट सलाद को उठा रहे और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। ये सब अभी देखो, नेक्स्ट वाला जो आया उसने बराबर गेस कर लिया, दैट इज ऑटो पायलट है गाइस। देखो ऐसा होता है ऑटो पायलट का यूज, मतलब ये बेनिफिट के जल्दी। और आप भी अगर आप कोडिंग प्रोग्रामिंग करते होगे ना आपके इसमें, तो ट्राई यूजिंग ऑटो पायलट फ्री वर्जन गाइस। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम मे भी आप करते होंगे, आई होप कि आप करते होंगे। ठीक है, तो ये सब डेटा अपने पास दिया हुआ है। ओके, नाउ नाउ हम अभी जो यूज करने वाले हैं, we will be putting these things into our actual formula of calculating the probability of salad, like the one who is picking the fruit salad। ठीक है, पहले तो जैसे आपने बोला था कि भाई फ्रूट सलाड तो 100% उठा रहे, बराबर, यहाँ पे 80 और यहाँ पे, बट उसमें हम ये भी देखेंगे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पिकिंग द फ्रूट सलाड। ओके, गिवन, तो यहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, इसमें क्या कर सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट फ्रूट सलाड, एक सेकेंड कुछ तो है, फ्रूट फ्रूट सलाड गिवन, ये हमारे पास डेटा है। बट इफ आई एम सेइंग कि, वन सेकेंड गाइस, हाँ हाँ ये बराबर बता रहा है यहाँ पे, बट ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाड इज इक्वल टू, ये वाला चीज, यही वाला चाहिए था, एंड दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। टोटल फ्रूट सलाड उठाने की प्रोबेबिलिटी वी आर कैलकुलेटिंग, एंड दिस इज नथिंग बट आवर ये वाला फॉर्मूला गाइस, जो हमने अपना एडिशन रूल देखा था ना, एडिशन रूल। ठीक है, एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कुछ एरर वगैरह है कहाँ। ठीक है, सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाड गिवन वेगन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वेगन। तो आपको कल का जो सेशन हुआ था हमारा, हमने कल के सेशन में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ऐसे चार देखे थे, और उसमें हमने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रूल हमने देखा था। तो दिस इज नथिंग बट आवर मल्टीप्लीकेशन रूल, एंड ये एंटायर जो है ये अपना एडिशन रूल।
अभी मल्टीप्लिकेशन रूल जो हमने कल देखा था, कल हमने उसके ऊपर डिस्कस भी किया था कि मल्टीप्लिकेशन रूल कब यूज करते हैं। और हमने दो दो वाली चीजें देखी थी, एक था इंडिपेंडेंट इवेंट अगर है, और दूसरा था डिपेंडेंट इवेंट अगर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि ये है, ये अपनी डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब कैसा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाड गिवन वेगन, मतलब क्या, वेजिटेरियन फ्रूट सलाड को उठा रहे हैं। ठीक है, उठा रहे हैं। एंड क्या होना चाहिए, डिपेंडेंसी क्या है कि ही दैट पर्सन शुड बी अ वेजिटेरियन, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें। और दूसरा जो है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो फ्रूट सलाड को उठा रहा है, डिपेंडेंसी क्या है कि वो नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग दिस। बट हमने ये जो चीज देखी थी क्या, ये वाला चीज ए यूनियन बी देखा था हमने, मतलब ये कल का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हमने कल डिस्कस किया था। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे देखा था बराबर। और एक चीज हमने ये भी देखी थी, माइनस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट वो माइनस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किस किस वाली चीज में देखी थी, व्हेन दैट इज अ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उस चीज में हमने देखी थी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गाइस, आपको याद होगा उस चीज में हमने क्या डिस्कस किया था, विच इवेंट कैन बी अ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऋषि ने उसका एग्जांपल भी बताया था एक, अ, परसों के टाइम पे, कि ही मेंशन कि भाई वो खाना भी खा रहा है एंड टीवी भी देख रहा है, राइट, बराबर। यस गाइस, हाँ यस। और दूसरी होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें क्या होता है कि भाई एक टाइम पे एक ही चीज होगी, मतलब क्या, इवेंट्स कैन नॉट ऑकर टुगेदर, इवेंट्स कैन नॉट ऑकर टुगेदर, राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के टाइम में वी यूज दिस फॉर्मूला, जहां पे इवेंट साथ में ऑकर नहीं होगी। तो एकदम मतलब आप लॉजिकली भी समझो, ये इंटरसेक्शन कब कब आएगा, जब दोनों का कॉमन वाला पार्ट होगा। अगर दोनों का कॉमन पार्ट है ही नहीं तो इंटरसेक्शन माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जीरो ही रहेगा हमेशा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये जीरो कब रहेगा, जब ये इंटरसेक्शन नहीं रहेगा तब, हाँ, ठीक है। और इंटरसेक्शन कब नहीं रहेगा, जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब रहेगी, मतलब एक इवेंट अगर ऑकर हुई तो दूसरी नहीं होगी, और दूसरी अगर ऑकर हुई तो पहली नहीं होगी। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव एडेड दिस टू टू इवेंट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाड गिवन वेगन मल्टीप्लाई बाय दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही इज वेगन और दैट पर्सन इज वेगन। ठीक है, और इसको हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नाउ गेटिंग द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ फ्रूट सलाड। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ फ्रूट सलाड। और यस, एंड यस आई हैव एग्जीक्यूटेड इट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, कितनी आई गाइस, 0.38, 0.38। एंड दिस इज द चांसेस, these are the chances of total chances of picking a fruit salad। ठीक है, पिकिंग अ फ्रूट सलाड, और वो कितने हैं, 0.38, विच इज नथिंग बट कि जो भी बंदा है हु इज पिकिंग अ फ्रूट सलाड, दैट बंदा इज वेगन होने के इतने चांसेस है। ये बेस थ्योरम हमको एक्चुअल में बताता है। Guru, but that formula हम्म B given A. हम्म So in this fourth terminal, what is B given A? ओके ओके, बी गिवन ए, मतलब कहाँ पे, ये Yeah, ये अपना, जो एक्चुअल yeah. This is हाँ our हाँ formula, हाँ, ना B यस given यस A. यस यस, यस गाइस, हाँ यू आर वेरी राइट। कहाँ पे आप बोल रहे हो, ये ना, हाँ, ये बी जो गिवन फॉर्मूला ए, अपना B given लाइकलीहुड, A, हाँ, यस प्रोबेबिलिटी यस, ऑफ B given A, वो करेक्ट यहाँ पे करेक्ट कहाँ पर है? करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली हम, हाँ, अपना अभी तक ये नहीं हुआ, बिकॉज ये वाला चीज बाकी ना, यस, ये वाला चीज डालना बाकी एक्चुअली, यस यस। तो ये हमको जो मिला वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फ्रूट सलाड ना। तो अभी इसमें आगे आगे वो अपने इसमें डालने हैं ना वैल्यूज, तो उसमें वैल्यूज डालने हैं, मतलब क्या है, वन सेकेंड ना, लेट मी डू इट।
ये नहीं है, राइट, यू आर राइट, ये नहीं है प्रोबेबिलिटी, अपनी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी अभी आएगी, बिकॉज दिस इज जस्ट अ कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की। आगे फिर हमको जो अपना अल्टीमेट गोल है क्या, कि वो होना चाहिए अपना, क्या होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए। हाँ, और गिवन क्या, उसने फ्रूट सलाद पिक किया है, ये है ना अपना अल्टीमेट गोल, ये है कि वो वेजिटेरियन होना चाहिए, उसने फ्रूट सलाद पिक किया है। तो ये जो है ये अपना निकला है सिर्फ कि कंबाइन में फ्रूट सलाद कितना पिक हुआ, और उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। नाउ लेट्स गो टू द लाइक्लीहुड वाला पार्ट, कौन सा, बी गिवन है। तो बी गिवन ए पे अपने वाले फॉर्मूला पे लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाद, ये तो चीज हो गया। देन वेगन, वेगन, ये वाला, हाँ ये वाला चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेगन फ्रूट सलाद, ठीक है। वेगन फ्रूट सलाद इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाद गिवन वेगन इनटू वेगन डिवाइड बाय ये जो हमने कैलकुलेट किया टोटल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फ्रूट सलाद, ठीक है। और देन ये वाला अगर निकलेगा ना, तो दिस विल बी आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, कि भाई वेगन होने के चांसेस, हु इज पिकिंग फ्रूट सलाद, हु इज पिकिंग फ्रूट सलाद इज इक्वल टू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाद गिवन वेगन, ठीक है। देखो इसको रीड करते टाइम थोड़ा यहाँ पे जम्बलिंग देखो, हाँ, हम निकाल रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ वेजिटेरियन होने की, और दिया हुआ इवेंट क्या है कि ही इज स्पीकिंग और दैट पर्सन इज स्पीकिंग फ्रूट सलाद, ठीक है। और ये वाला चीज हमको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाद पिक करने की गिवन जो भी पर्सन है वो वेजिटेरियन है, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वेगन एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रूट सलाद विच वी हैव कैलकुलेटेड, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, और इस प्रोबेबिलिटी पे पता चलेगा कि भाई उसके चांसेस कितने थे, वेजिटेरियन होने के चांसेस कितने थे, उसके वेजिटेरियन होने के चांसेस थे 0.63 चांसेस थे, कितने, 0.63, ठीक है। बट वी कैन नॉट से कि भाई 80% चांसेस थे उसके, जो भी बंदा पिक कर रहा है, वी कैन नॉट से कि 80% चांसेस है कि वो वेजिटेरियन है, वी विल से कि 0.63 चांसेस है कि वो बंदा वेजिटेरियन है। मतलब बचे हुए जितने भी है ना, 37% चांसेस है कि वो नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, जिसने फ्रूट सलाद पिक किया था। मतलब हमने अल्टीमेटली क्या फाइंड फाइंड आउट किया यहाँ पे, हम देख रहे थे वो बंदा वेजिटेरियन है या नहीं है, उस पे हम फोकस कर रहे थे, बंदा क्या है, वेजिटेरियन है या नहीं है। लेकिन मतलब अभी फिर से वही चीज बताने की चीज ऐसा है, अगर ये बंदे बात कर रहे हैं उस चीज पे कि जिसने जिसने फ्रूट सलाद पिक किया है, ठीक है, जिसने फ्रूट सलाद जिस बंदे ने पिक किया, इस बंदे ने बोला कि भाई वो वेजिटेरियन है, ठीक है, वेजिटेरियन है, और ये 0.63% सही भी निकल गया कि वो वेजिटेरियन था। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये देख मैंने बोला था ना कि वेजिटेरियन, हाँ इसने वो लाइकलीहुड के बारे में बता दिया, ठीक है, लाइकलीहुड, पर बट ये फिगर जब थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाएगी, तो उसमें आपका लाइकलीहुड भी थोड़ा थोड़ा ये करने लग गया, फ्लक्चुएट करने लग जाएगा। मतलब क्या, मैं इस वाली चीज पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे 80 था, 80% का था, लेकिन यहाँ पे अगर 70% रहता, 60% रहता, उस टाइम में आप कॉन्फिडेंटली कितना बोल पाते कि भाई हाँ वो वेजिटेरियन था, या हाँ वो नॉन वेजिटेरियन ही है। वो कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन। और ये चीज कैसा है ना, अल्टीमेटली मशीन मशीन को लगने वाली चीज है ये ना, आपका ये अजम्पशन वगैरह उस पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन जो अल्टीमेट जो फिगर लाएगा ना, उस पे मशीन क्या बिलीव करता है, वो वाली चीज है। अभी अभी इसको मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल में, मतलब मशीन में कैसे यूज होता है, आई विल टेल, एंड देन आई थिंक वी विल कंक्लूड ओवर हियर, ठीक है। ये वाली जो Uh, वैल्यू आई ना, यस, Gaurav, like in that formula, can you please scroll it up हाँ 1 सेकेंड, हाँ, यस, to that formula? ये वाला अपना, हाँ, Little bit, yeah. So ओके, in this formula, that probability of B given A into probability of A, right? हाँ बराबर, So that P given A, so that would be our first variable, right? यस यस, So in that function, where it is हाँ अपने at वाले here, कैलकुलेशन में क्या, हाँ हमारे कैलकुलेशन में ये ये वाला, कौन सा पार्ट आएगा? हाँ ये वाला, Okay, that is our probability of B given A. हाँ
Okay, and that probability of fruit salad, Hmm. Yes. that would be our probability of B. Can you Which scroll we it? have calculated. Yeah. Can you again scroll it up? That is of P of B, right? Yes. Yes. Probability of B. Hmm. And what is that probability of A, which we multiplied? ये वाली चीज क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ वेगन वेगन थी वो जस्ट वेगन A. Okay, that प्रोबेबिलिटी is ऑफ ए इज 0 80 point, 0.3, हाँ वेगन वाला right? ये 0.3 यस Okay, okay, 0.0 got it. हाँ एक्चुअली ये जो सब चीज होगा ना आपको मशीन लर्निंग में जब जाएंगे ना तो दिस इज ओनली ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको जब मशीन लर्निंग में इंप्लीमेंट करेंगे ना तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है जो अपना नेव बेस का एक इंपोर्ट लाइब्रेरी होता है वो इंपोर्ट इंपोर्ट एसके लर्न होता है एक्चुअली ठीक है इंपोर्ट एसके लर्न जो लाइब्रेरी ना उसमें से इसके लर्न में से नेव बेस लेट मी चेक नेव बेस हाँ ये ऐसा इंपोर्ट करना रहेगा आपको बस क्या ये नेओबेस का बस ये इंपोर्ट करोगे एनबी बोलोगे और जब भी मॉडल में फीड करना है यू हैव टू डू ओनली वन थिंग ये करके आप क्या करोगे अगर कोई डेटा है जो भी फिर एनबी डॉट एनबी डॉट जो भी उसके देखो गॉसियन एनबी ऐसे एक आएगा और उसमें आपको सिर्फ डेटा पास कर देना है बस इतना ही करना है आपको फिर उसके बाद मल्टीनोमियल एनबी करके होता है तो ये बेस थ्योरम जो है ना बस 2 लाइन का कोड है द थिंग बिहाइंड इट उसके बैकग्राउंड में जो चलता है वो सब आपको सिर्फ ऐसे ये फॉर्मूला और ये सब उसके हिसाब से मैंने बताया बट आपको जब एक्चुअल में आएगा तो सिर्फ आपको ये इसका यूज करना है एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और उसको एक लाइन में लिख देना है और यू हैव यूज द दिस फॉर्मूला बट उसके पीछे जो रीजन है अभी मैं ये जो वैल्यू का बता रहा हूँ ना ये एक्चुअल में काम कैसे करता है नेव बेस और आवर बेस थ्योरम कैसे कैलकुलेट करता है और कैसे काम करता है एक एग्जांपल बता के यहाँ पे कंक्लूड करके रुक जाएंगे उसके बाद फिर आगे जैसे अपना जो नए नए चीजें आएंगी हाइपोथेसिस वगैरह उस पर डिस्कस करेंगे तो होता क्या है ओके फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एट द एंड हमने जो निकाला वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू था और प्रोबेबिलिटी वैल्यू के बेसिस पे ही सब कैलकुलेशन और सब आउटपुट और सब चीजें डिपेंड करती है कि उसको कैसे डील करें ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर इफ यू आर यूजिंग नेव बेस्ड दिस algorithm और लेट्स से मॉडल सॉल्विंग वन एनी काइंड ऑफ लेट्स से प्रॉब्लम तो मैं कोई एक प्रॉब्लम बता मतलब एक जस्ट नेक्स्ट स्टेप बता चलो ऐसा है कि यहाँ पे ना एक वो गोलैंग करके या कुछ एक गेम है चलो वो नहीं पता चेस चेस के बारे में बताता हूँ तो चेस के लिए तो एक मशीन का था बट इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था एआई और मशीन लर्निंग का कि भाई नेक्स्ट मूव अपना एआई कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा मतलब मशीन लर्निंग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि नेक्स्ट मूव क्या है ठीक है नेक्स्ट मूव क्या है तो ये नेक्स्ट मूव के लिए ना गाइज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स उस मॉडल को ट्रेन किया है ऑलरेडी सब जो भी अर्लियर जो चैंपियंस ने जो मूव किए थे वो सब फीड किया कर दिया डेटा पूरा फीड कर दिया इसको मॉडल को ठीक है और ये मॉडल ऐसा बना है ये मॉडल बना है एक नेव बेस मतलब आई एम गिविंग हाँ बिकॉज मॉडल जो भी बनते हैं वो बहुत सारे एल्गोरिदम बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स के टाइप से आई विल कम देयर व्हेन वी विल बी लर्निंग मशीन लर्निंग का जब मॉडल आएगा तब तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग बेस वाला पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बताने के लिए हाँ तो कैसे होगा ये सब एप्लीकेबल कैसे होगा कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो आई एम जस्ट टेलिंग इट बाय गिविंग द एग्जांपल ठीक है तो यहाँ पे ना यहाँ पे जो भी नेक्स्ट मूव का जो पार्ट आता है कि भाई नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए उसका जब प्रिडिक्शन आता है ना तो ये जो मॉडल है मतलब ये मैंने एक मॉडल बोला जब एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या होता है एनसेम्बल टेक्निक्स होती है उसमें बहुत सारे मॉडल काम करते हैं साइमल्टेनियसली और उन सब का बना के जो कॉमन एक बनता है चीज वो फाइनल मॉडल होता है जैसे आपको पता होगा चैट जीपीटी वगैरह ये सब चीजें तो है ना इसका प्रेडिक्शंस होते हैं इसके प्रेडिक्शंस होते हैं और प्रेडिक्शंस में क्या होता है ना उसमें भी प्रोबेबिलिटीज होती है मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती है जैसे कि अभी यहाँ हमने जो देखा 0.64 होता है उसके बाद आएगा लेट्स से कि आपको मिला एक पॉइंट 0 पॉइंट आपको मिला 42 है ऐसी एक लिस्ट बनेगी प्रिडिक्शंस की ठीक है और लिस्ट बनने के बाद मतलब ऐसे समझो यहाँ पे जीरो ये इतने चांसेस है ये इतने चांसेस है यहाँ पे 0.32 चांसेस है 0.10 चांसेस है वो मतलब ये मूव के नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है ये होने के बाद जो हाइयर प्रोबेबिलिटी उसने दी है ना फॉर एग्जांपल 64 दी है तो ये बैकग्राउंड में इसने अल्गोरिदम यूज करके मशीन लर्निंग मॉडल करके ये सब आउटपुट जनरेट किए थे एक्चुअली प्रेडिक्टेड किए थे
बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस, जैसे एक ह्यूमन भी करता है गाइस। अगर कोई दो बंदे चेस खेल रहे हैं ना, ये बोलता है भाई इसने यहाँ पे रखना चाहिए, ये बोलता है भाई इसने ये जो पैदा है वो यहाँ पे हिला के, मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर में बोल रहा हूँ। इन द बैकग्राउंड ऐसे चलता है कि ये चांसेस, मतलब ये करेगा तो क्या होगा, मोर रिलायबल है क्या, ये सब प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होगी, और जब जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है फाइनली वो बोल देगा कि भाई तू इस मूव पे जा जिसने ये वाली प्रोबेबिलिटी दी है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं। वो जस्ट एक मैं शॉर्ट में आपको दिया कि भाई उसका यूज फिर कैसे, आपने तो यहाँ पे सीख लिया ये ऐसा निकलता है, कुछ तो करता है कैलकुलेशन, फिर उसका यूज क्या है। तो जैसे आई हैव सेड के जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखते जाएंगे कि कैसे होता है पिक्चर में, एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया। तो आई होप कि बेस थ्योरम में जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। मे बी आप रिपीट करो सेशन रिकॉर्डिंग, फिर से देखो, बार बार देखो, बट दिस वाज वन टाइम गाइस बेस थ्योरम। जस्ट आई होप कि आपको 10 20 30% भी समझाना, इट्स ओके, इट्स सफिशिएंट। उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं जो लगने वाली है, जैसे कि मैंने जो बोला टाइप 1 टाइप 2 एरर बोला, हाइपोथेसिस वगैरह, उसको देखेंगे। उसके बाद वो टी टेस्ट जेड टेस्ट वो वाली चीजें हैं उसको देखेंगे। और इतना डीपली इंटरव्यू में पूछते हैं क्या, मतलब ये ये जस्ट नॉर्मल आस्क? नहीं नहीं, इंटरव्यू में आपको है ना इतना डीपली नहीं पूछेंगे, बट हो सकता है वो पूछ सकते हैं कि भाई बेस थ्योरम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, बेस थ्योरम, व्हाट इज द यूज ऑफ बेस थ्योरम, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम, ऐसे आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अगर सिर्फ मैं फॉर्मूला बताता कि और आगे बढ़ बढ़ जाता, और फॉर्मूला ऐसा है उसमें हमने ये कैलकुलेट किया यूज किया, वो बता के मैं आगे बढ़ता, तो मे बी उस टाइम पे उस क्वेश्चन जो भी आएगा और उस आता तो आप इतना उसको ठीक से नहीं बता। बट जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, मैंने कुछ चीजें आपको बताई हाइपोथेसिस वाला और बेस थ्योरम यूज करने का, जो चीज मैंने बोला कि मतलब जनरली क्या क्या होता है कि हाउ लाइक जस्ट रैंडम डिसीजन और रैंडम अजम्पशंस के बेसिस पे एक कोई डिसीजन लेना, और प्रॉपर ये इसका इम्प्लीमेंटेशन करके बेस थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन करके डिसीजन लेना, कि उसका डिफरेंस कितना रहता है, दैट इज द पार्ट। आई होप कि आप इसको बार बार बेस थ्योरम थोड़ी अलग वे से और एक्सप्लोर करो, ताकि आपका बेस थ्योरम में अगर कोई पूछता है क्वेश्चन तो यू विल गिव आंसर टू दैट, लाइक टू हिम और हर, और जो भी इंटरव्यू है उसको। ठीक है, लेकिन इतना डीप में नहीं पूछेंगे आपको बेस थ्योरम के बारे में, सिर्फ पूछेंगे बेस थ्योरम पता है, हाँ फिर क्या पता है। अगर ऐसा पूछ दिया तो एटलीस्ट आप 2 3 लाइन तो बोल पाओगे, कुछ एक्सप्लेन तो कर पाओगे कि हाँ भाई बेस थ्योरम, फिर आपके मतलब मैंने हिंदी में या मेरे इसमें आपको बताया, एक्सप्लेन किया, मे बी आप अच्छे से समझ जाने के बाद आपके लैंग्वेज में, आपके उस जो भी आपने समझा उस चीज में सामने वाले को बताओगे। और अगर चाहिए तो आप डायरेक्ट ये भी बताओ, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये इतना अगर बता रहा है, ये सब एग्जांपल भी दे रहा है, इतना सब बता रहा है, इसका मतलब ये, हाँ ठीक है भाई, इसको बेस थ्योरम डीप में पता है। ठीक है ना, तो ये चीजें है गाइस। देखो एफर्ट्स है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं अभी, बट ये छोटे 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 इंपॉर्टेंट चीजें है जो आप आगे आपको जाके काम में आएंगी, नथिंग एल्स। और जैसे मैंने बोला कि भाई प्रोसेस है, तो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोसेस में आएगा जो कि आ रहा है, और मैं उसको आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स में होता है, बहुत सारे बंदे मतलब डिसमूड भी होते हैं, कुछ थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस और थोड़े डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, फिर ये स्टैटिस्टिक्स तो इतना अगर डिफिकल्ट है तो कैसे हम कर पाएंगे। सी गाइज, यही तो एक परीक्षा है, फिर यहाँ पे टिके रहो, आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि आप मतलब जो भी चीजें, बिकॉज यही एक स्टैटिस्टिक्स है, वो बहुत क्रिटिकल लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, बट मैं जितना पॉसिबल हो सके उतना पॉसिबल उस लेवल पे जाके आपको बता मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। एंड ठीक यही एक थोड़ा सा था, आगे आगे जो भी चीजें आएंगी अभी वो थोड़ी आपको धीरे धीरे लाइटली आपको इजी होती जाएंगी। एंड देन ये पढ़ा अगर निकल गया स्टैटिस्टिक्स का हमने कर लिया आगे, तो फिर उसके बाद तो जो भी चीजें आएंगी वो दैट दोज आर वेरी गुड, एंड आपको बहुत ज्यादा आइडिया आएगा, बहुत ज्यादा। और जितना भी है गाइस, देना मेरा काम है, कितना लेना, कहाँ तक लेना, और कितना उसको यूज करना और कहाँ तक करना, वो ये आप पे आपके ऊपर। तो ओके गाइस, बिकॉज इवन आई नो जो भी मैं अभी मेरे ऑफिस में काम कर रहा हूँ वो इतना स्टैटिस्टिक्स और ये सब चीजें नहीं है, बट आपको भी पता है, यू आर ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, आपने भी 8 स्टैंडर्ड में या 9 या 10 स्टैंडर्ड में आपने बायोलॉजी पढ़ा था, ये सब चीजें पढ़ी थी, वो अभी यूज नहीं हो रही, बट अपना नॉलेज वो तो कंपलसरी प्रोसेस है, उसके थ्रू तो जाना ही पड़ता है। तो द थिंग इज, एंड वी आर डूइंग द सेम थिंग, कि हम भी उस प्रोसेस से जा रहे हैं अभी। आई होप कि आप आज के सेशन में भी जितना हो सके उतना आपको थोड़ा बार कुछ चीजें समझी होगी, नहीं समझी होगी, बट थैंक्स फॉर बीइंग कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।
जितने कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आगे और अच्छा सा कर पाओगे गाइस। एंड हमेशा हैप्पी रहो, मोटिवेट रहो, बिकॉज हर हर दिन सेम नहीं होता, बट वो एक ही दिन होता है जिसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है। मतलब ठीक है। नाउ आई एम स्टॉपिंग टॉकिंग और हियर, एंड मैं थोड़ा देर रुकता हूँ, अभी पॉज लेता हूँ। आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस गाइस। वी विल वेट हेलो फॉर गौरव सर, 5 मिनट्स। यस। वन क्वेश्चन। वो आपने उधर 0.63% बताए, ठीक है आंसर। तो एक्चुअल में तो वहाँ पे हम लोग जब 80% कंसिडर किए तो 0.63 मतलब रहेगा कि 63% रहेगा वो? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम यू यू कैन सी द स्क्रीन ना, और मेरा स्क्रीन नहीं, शेयर। अभी स्क्रीन ठीक है, शेयरिंग नहीं ओके, आपका। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जस्ट मतलब फाइनल आंसर उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके 63% पकड़ेंगे ना फाइनली? हाँ हाँ, 0.63 मतलब 63%। 63%, या हाँ, करेक्ट, बट प्लीज बट प्लीज जस्ट वन जस्ट क्वेश्चन। जस्ट ए सेकंड, बिकॉज कैसे ना, मैं वो शेयर करके ही फिर उसी पॉइंट पे आके फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ, अभी दिख रही। ओके ओके। तो फिर ये वाला चीज ना, आप जो मतलब अभी जो पूछ रहे थे फाइनल आंसर कि जो हाँ आया ये हुआ है। फाइनल आंसर, ओके। हाँ हाँ, करेक्ट। बराबर, 0.63 इज नथिंग बट 63%, यस। और या ओके। हाँ हाँ, करेक्ट। यस यस, तो वो अपनी प्रोबेबिलिटी है कि किसकी प्रोबेबिलिटी, कि जो भी फ्रूट सलाद उठा है ना, वो बंदा वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी है। वो बंदा वेजिटेरियन होने की। ठीक है। और यहाँ पे जो अपने को जो दिख रहा था ना, उसमें क्या दिख रहा था कि भाई 80% अगर वेजिटेरियन बंदे पिक कर रहे हैं ना, ठीक है, वेजिटेरियन बंदे है 80%, जो फ्रूट सलाद पिक पिक कर रहे हैं, उसका अपने पास 80% ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। बट ये जो प्रायोरिटी जो दिया है हुआ है ना, वो क्या है कि वेजिटेरियन बंदे फ्रूट सलाद पिक कर रहे हैं उसकी है। बट जो बंदा फ्रूट सलाद पिक कर रहा है, वो बंदा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उसकी हम प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, और वो इतनी निकली। ऐसा बेस थ्योरम। ओके। ऐसे या एनीवेज गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग। अगर और भी कुछ है तो आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स। एंड एज आई सेड के देखो, जो रियलिटी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये प्रोसेस है और ये स्टैटिस्टिक्स है। जो भी है, कितना वेटेज देना है, कितना वेटेज नहीं देना है, आई नो इट, बिकॉज आई नो कि जो अभी व्हाट आई एम डूइंग, मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ ना, आई एम इवन नॉट वर्किंग ऑन मशीन लर्निंग, आई एम वर्किंग टोटली ऑन एआई। मेरे जो काम चलते हैं, मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स दूं क्या, मैं क्या कौन सा काम कर रहा हूँ अभी। अगर आप मतलब है यहाँ पे तो ही बताऊंगा, नहीं तो इट्स ओके, मैं बाद में जब भी टाइम मिलेगा तब बता दूंगा। ठीक है। बेस्ड ऑन योर एबिलिटी गाइस, क्योंकि कैसे ना, मैं जबरदस्ती खींचतान के आपको ज्यादा देर यहाँ पे नहीं बैठा था। ठीक है। तब देखेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, मैं आई विल टेल यू कि क्या क्या काम हम करते हैं, अभी कैसा कर रहे हैं, और कैसा मशीन लर्निंग। बट जैसे मैंने बोला ना कि एक प्रोसेस है, जैसे मशीन लर्निंग का फाउंडेशन आपको पता होना जरूरी है। जरूरी इन द सेंस कि स्ट्रांग बनने के लिए, जब भी आप काम करोगे इस सब चीजों पे, तो आपको जब ये स्ट्रांग फाउंडेशन होगा ना, तभी जाके आप लेस टाइम में ज्यादा काम कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत बार ये मैंने ऐसे बहुत बंदों को देखा भाई, 10-10 12-12 घंटे वो काम करते, और कुछ बंदे होते 3-4 घंटे काम करते। द रीजन इज, वो ऐसा कुछ नहीं कि ये 10-12 वाले ज्यादा काम करते और 2-3 घंटे वाले कम काम करते, नहीं। वो स्मार्ट शार्प, और मतलब वाई दे आर स्मार्ट स्मार्ट और शार्प, बिकॉज उन्होंने पहले बहुत कुछ घिसा है उस चीज पे, इसलिए वो जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और ये 12-12 घंटे वाले लोगों को थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में, प्रॉब्लम होती है, ये सब चीजें, दैट इज जस्ट है भाई। लेकिन क्या आप बताए ना अभी, वो जैसे नॉर्मल डिस्कशन हो जाएगा। बट ओके, आई होप कि आप हम फिर मिलेंगे मंडे को नए नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, और नल हाइपोथेसिस वगैरह जो मैंने जैसे बोले, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, काफी सारा डिस्कशन होगा। एंड जो टी टेस्ट है, सैंपल टेस्ट, वो सब करेंगे। एंड मैं उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स का जो भी है, मैं असाइनमेंट्स वगैरह भी दे दूंगा, जस्ट एक एक फॉर्मल और नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए गाइस। और जब एक्चुअल जो अपना चालू होगा ना, वो शुरू हो जाएगा फिर एडीए से। मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन में जो चीजें होती है, वो शुरू हो जाएगी उसके, ये स्टैटिस्टिक्स का जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, ईडीए। वहां से फिर आगे का जो भी आप सीखोगे, वो सब नया रहेगा आपके लिए। अभी जो हमने देखा है ना अभी तक, आई होप कि आपने कभी ना कभी इसको सुना है कॉलेज में, या आपके जो भी था स्कूल में, लेकिन ये चीजें आपने देखी है, सिर्फ उसको रिवीजन हो रहा है। क्योंकि आई नो कि भाई आपने बेस थ्योरम का नाम आज पहली बार नहीं सुना है, कहीं ना कहीं आपने उसका सुना होगा, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, साइंस के बैकग्राउंड से हो, तो आपने ये सब चीजें कहीं ना कहीं सुनी है। नहीं सुनी है तो मे बी आपने वो मिस किया होगा, बट ये हमारे सिलेबस में था ये सब, जब तो हम। इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कभी स्टार्ट होना है अपना? हाँ, तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब
मतलब मैं एक सीधा मतलब बताता हूँ एज अ रिक्वेस्ट ना, क्योंकि कैसा होता था कि अभी कॉलेज में हम लोग ने ये सब सीखे, ठीक है, मैंने ये सब सीखा हाँ कॉलेज में। हाँ हाँ। बट क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे इसका क्या यूज होने वाला है, तो मैंने उसको अच्छा। इतना ध्यान से नहीं सीखा, मेरे को याद भी नहीं कि बराबर। आज ओके। मैंने कभी बेस थ्योरम पहले सुना हूँ। ओके। तो यस। वो करेक्ट इसलिए हुआ करेक्ट। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आगे क्या यूज होने वाला है। तो अभी नहीं भी क्या होता लग है रहा है सर। कि बट अभी भी मतलब सिखा रहे हो हाँ। ना, तो ऐसे लग रहा है कि ठीक है यूज होगा, किधर ना किधर होगा, बट क्या एक्चुअल में होगा ना, तो अच्छा। उसके वजह से हाँ। 100% इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है उसके अंदर कि मेरे को ओके। ये किस लेवल तक के अच्छे से नहीं। सीखना है। अच्छा, ठीक है, इसका तो यूज। जस्ट हम हाँ लोग एक हाँ। ऐसा कर सकते हैं कि मतलब एक छोटा सा एक सेशन ले जिसके अंदर ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो कि हम लोग को क्या यूज आने वाला है अच्छा। एआई एंड मशीन लर्निंग के अंदर। ओके। और उसके बाद में हम लोग फिर ये सब कंटिन्यू अगर कर सकते हैं तो हम लोग चलेगा को चलेगा, तो वैसा करूंगा। बट क्या हो जाएगा वो सेशन में, मैं जो कोड एक्सप्लेन मतलब जो कोड दिखाऊंगा उसमें रहेगा मशीन लर्निंग वाला कोड या मशीन रहेगा। लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन। बट इट्स ओके। तो देखने के लिए क्या इतना दिक्कत वाला काम नहीं, तो दिखा दूंगा। जैसे अभी मैं इंपोर्ट वाला बताया था आपको, इंपोर्ट और नेव बेस किया, तो इट्स ओके, दैट इज गुड सजेशन एक्चुअली। और मैं मे बी होपफुली नेक्स्ट सेशन में मैं डायरेक्ट इसका एक आपको बताऊंगा एग्जीक्यूट करके कि भाई ये नेव बेस थ्योरम का कैसा यूज हुआ। ठीक है, दैट इज गुड सजेशन। एंड यस, ठीक वो है। होने के बाद ही आपको और इंटरेस्ट आएगा। बट या फॉर श्योर ये नेव बेस मतलब क्या, हम इसलिए उसको देख रहे हैं बिकॉज बिकॉज ये है, मतलब जैसे मैंने बोला कि व्हाट आई एम टीचिंग, मैंने जो बोला था पाइथन फॉर मशीन लर्निंग, राइट? तो पाइथन जो मैंने बताया वो जितना भी बताया वो सब मशीन लर्निंग में लगने वाला पाइथन था। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स तो बहुत बड़ा है, बहुत मतलब देयर आर नंबर ऑफ थ्योरम्स, नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें। बट मैं सिर्फ उतने ही कवर कर रहा हूं जो लगने वाली है। लगने वाली इन द सेंस, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे ऐसे वाली नहीं लगेगी। लगेगी तो डायरेक्ट ये अभी बेस थ्योरम ये लगेगा, मतलब इसको इंपोर्ट करना होगा, इसको यूज करना होगा। ठीक है। बट और वो बैकग्राउंड में कैसा काम होता है, क्या कैलकुलेट करता है, वो मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया। बट फॉर श्योर ये नए बेस हम इंपोर्ट करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए। मतलब क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल, एक एक रियल टाइम एग्जांपल मैं बताऊं, अगर मैंने आपको कोई एक इमेज दे दी, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई एज ए ह्यूमन आप उस इमेज को देख के ही बोल दोगे कि भाई ये कैट है या डॉग है या कोई दूसरा एनिमल है, ह्यूमन आप बोलोगे। लेकिन मशीन उसको कैसे बताएगा कि भाई ये कैट है या डॉग है या एलिफेंट है? बराबर। तो मशीन को मशीन ने बताने के लिए मशीन कैसे सीखेगा इसको और कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? तो ये ऐसे ही एल्गोरिदम से, ऐसे ही थ्योरम है। जैसे कि बेस थ्योरम वो इम्प्लीमेंट किस वे से करेगा, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा कि भाई ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, तो उस मतलब वो कंप्यूटर विजन का पार्ट है, कैसे उस इमेज को प्रोसेस करता है, किस वे से जाता है, उसके बाद उसके में उसमें देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। फिर वो अप सैम्पलिंग है, डाउन सैम्पलिंग है, उसी इमेज को क्रॉप करके वो मल्टीपल सेगमेंट में डाल के उसको ही डेटा को शफलिंग करता है, फिर बैक प्रोपोगेशन, दीज आर सब सब टर्मिनोलॉजीज है, आगे सीखेंगे जैसे जाएंगे। बट इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो प्रोबेबिलिटी देखता है कि इट इज वॉट एवर दैट दिस नेव बेस क्या है, ये अल्गोरिदम है जो ट्रेन हुआ है, ये मॉडल एक डेटा पे, बहुत सारा लेबल डेटा पे ट्रेन हुआ है। लेबल डेटा वगैरह जो भी टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ ना, ये आएगी सामने, इसलिए अभी सिर्फ सुन लो उसको। तो लेबल डेटा जो भी होता है इमेजेस का, उस पर वो ट्रेन हुआ होता है। और जब ये नया डेटा उसको जाता है ना, ये ट्राई, ये क्या करता है फिर, ये क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी निकालेगा, चांसेस निकालेगा कि भाई ये नया फोटो जो है वो कितने चांसेस है कि ये डॉग से मैच हो रहा है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कैट से मैच हो रहा है, कितनी प्रोबेबिलिटी हो कि एलिफेंट से मैच हो रहा है, वो सब प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज निकालता है एक्चुअली। तब जाके वो बोलता है कि भाई हाँ, डॉग से मैच होने की प्रोबेबिलिटी है 73%, कैट से मैच होने की प्रोबेबिलिटी है भाई जो भी है 22%। तो जो हाईएस्ट जो फिगर आई ना, तो वो बोलेगा कि ये डॉग है। ठीक है, तो ऐसे बैकग्राउंड में चलता है। फिर उस क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम्स के लिए फिर कैटेगरिकल डिसीजन मेकिंग, वहां पे डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है। जैसे कि मैंने जब शेयर कर रहा था, आपने कुछ तो एक नोटबुक देखा होगा जिसमें वो नोटबुक में लिखा था कुछ तो रैंडम, ऐसा कुछ तो लिखा, डिसीजन ट्री वगैरह, एंट्रोपी, बिकॉज वी आर देयर ना। मेरी मेरी जो पहली बैच है वो हम एंट्रोपी पे चल रहे हैं, अभी रैंडम फॉरेस्ट पे चल रहे हैं। तो ऐसे ये सब चीजें आएंगी आपको, आप डोंट वरी, आप सिर्फ बने रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आई विल टीच इन दैट वे। सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स आई नो कि भाई कितना आपकी फ्रीक्वेंसी वहां तक मैच करना ना, दिस इज आई नो के डिफिकल्ट टास्क है, बट आई एम ट्राइंग टू डू दैट। मैं बहुत सारे एग्जांपल थोड़े थोड़े इधर उधर के बता के आपको वहां तक लेके आने का एक कोशिश कर रहा हूँ। बट मैंने जैसे बोला है, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है स्टैटिस्टिक्स में होता है ऐसा कि बहुत बार एक लाइन होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है, वहां तक मैच नहीं हो पाती, और ऐसे लगने लगता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, होता है। बट उसके आगे जब आप आओगे ईडीए में आओगे,
मशीन लर्निंग में आओगे, उसके बाद वो सब जो मैं बोला अभी, न्यूरल नेटवर्क्स, फिर तब जाके आपको बराबर रिलेट होना, मतलब उसमें उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो दैट, तो ये सब चीजें गाइस, कंसिस्टेंट रहिए आप, चलते रहिए जैसे आगे जैसे चलेगा जैसे आएगा, बट धीरे धीरे यू गाइस, हम ये प्रोसेस ही है, मतलब हर एक प्रोसेस ऐसे ही होती है गाइस। शुरू में डिफिकल्ट, और फिर कंसिस्टेंट बने रहो रहो, और उसके बाद धीरे धीरे वो आदत होती है, और धीरे धीरे ब्रेन को भी उसकी आदत हो जाती है, और हमारा परफेक्शन बन जाता है उस चीज में। तो यहाँ पे माइंडसेट और कंसिस्टेंसी इज द की। टिके रहिए और आगे चलिए जैसे चलना है। जैसे इंजीनियर अगर कोई बनना चाहता है, तो एक बार वो पाइपलाइन में घुस गया, तो 4 साल 6 साल 5 साल बाद वो इंजीनियर बन के ही निकलता है। वैसे ही है, बिकॉज ह्यूमन माइंड है, ब्रेन है, सब चीजें है। बट ओके गाइस, सो ये कैसे बातें करते रहेंगे, और मैं बोलते ही रहूंगा, बिकॉज दैट इज माई, ये वीकनेस भी बोल सकते हैं कि एक बार शुरू हो गया तो चलते रहते बस। एज आई सेड कि मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ, और कुछ है तो आप डिस्कस कीजिए। सिर्फ आपका इस स्टेज पे मैं यही बोल सकता हूँ मेरे साइड से कि टिके रहिए, बिकॉज देर आर सम अदर गाइज। अमोल, इफ यू लाइक, आप अगर अनम्यूट होना चाहे, और बिकॉज आई थिंक आप पहले फर्स्ट बैच में कहाँ तक थे अमोल, कब तक साथ थे वहां पे? बिकॉज यू हैव शिफ्टेड टू दिस इवनिंग बैच ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। इफ यू आर देयर, फील फ्री टू। स्टॅटिस्टिक्स पर्यंत होतं. हा, स्टॅट स्टॅटिस्टिक्स. मग ईडीए त्याच्यानंतर ईडीएच्या पुढचं. नाही नाही नाही, स्टॅटिस्टिक्स सेकंड मॉड्यूल आहे आपलं. मग त्याच्यानंतर ईडीए येतं, मग हा, ईडीए ईडीए नंतर पर्यंत आपलं होतं. मशीन लर्निंग येतं. ईडीए पर्यंत होतं. ओके ओके, ईडीए पर्यंत. अच्छा, मग मशीन लर्निंग जस्ट मी जस्ट याच्यासाठी हे करतोय की ठीक आहे, इट्स ओके. ओके गाइस, थँक्यू, थँक्स फॉर बीइंग हिअर. वी विल मीट ऑन मंडे. Yeah, थँक्यू. ठीक आहे. थँक्यू. बाय.